now. It is live on Facebook. Assalamualaikum. Walaikum assalam. Yeah. Setting on. जी फेसबुक पे आ रही है और लाइव है। Okay, that's good. आ रहा है फेसबुक पे आ रहा है। I'm saying since we are live, we should start behaving ourselves. Yes. Sure. 50 लोग हुए सिर्फ। Only 50 are there. We still have time. They will join. Yeah. मिनट में नहीं। फेसबुक का लिंक शेयर कर सकता है कोई? The link was already shared, I think, yes. With the chat messages, the link was there on WhatsApp. I will send you, Asif bhai. Okay, thank you. Okay. Check on the group in your. Yeah, the link has been shared on the chat. Faisal, if you could again take the host responsibility back and again make him, because he can only do one live at a time. Okay, so ask him to make me the host, and then I will. Then you will reclaim the host, no? How do I do that? नीचे लिखा हुआ होगा, आप उस पे जाइए, reclaim आ जाएगा. Just a minute. On your right. The link has been shared on the chat. Okay, yes. Yeah. Now again make him the host, please. Okay, I'll make him. Rab Nawaz the host, yeah. Mr. Rab Nawaz. Okay. RAB. Yeah, I found it. Great. Make host. So, okay. He is the host again. Rab Nawaz, you are back. Hello? Yeah.
Now he will share it on YouTube. Yeah, it will also go on YouTube. Okay. As soon as he has done it, we will know. Yeah. Right now, it shows us live on Facebook, and then we will do that. Faisal, we can see only live on Facebook. Where Yeah. It will be one by one. Now he'll be making it live on YouTube. All right. तो सलमान भाई, आपने क्या मल्टीपल स्क्रीन्स लगा रखे हैं? एक पे जूम देखेंगे, एक पे फेसबुक और एक पर यूट्यूब। अरे भाई, एक इधर लगा है, एक टीवी पे लगा है। आज बहुत ही बढ़िया आ रही है, वेबिनार होगी इंशाल्लाह। चलिए, इंशाल्लाह वो तो होगी। बस थोड़ा साउंड का ख्याल रखिएगा ताकि इको ना हो। हाँ, वो Yeah, if too close by things are there, then there are a lot of chances of echo. इतना टेक्निकल तो हूँ मैं। अरे वो तो मालूम है, मैं तो खाली तफरी कर रहा हूँ आपके साथ यार। I'm just having fun. थोड़ा इसीलिए चेयर करूँगा, आज बात पर सीरियस लग रहे हैं। वो बात आपको जो बात है दानिश भाई, वाली बोली दिख रही कि मुशायरे वाली जैसी। मुशायरे वाली क्या करूँ मैं? कल मुशायरे में बहुत परेशान हो गया था मैं। I was all sleepy. मुशायरे में वो साहब जो जिनको आप पढ़वा रहे थे, उनको तो पता ही नहीं था कि क्या कैसे माइक लगाते हैं, कैसे ईयरफोन लगाते हैं। सर, उसमें होता क्या है कि आजकल शायरों की दुकान उठी हुई है, तो इसलिए परेशान है वो। कभी कभी कोई बुला लेता है। Time is going to this fast. Yeah, fine. Just give us a minute. I think it will take a minute. 5 o'clock, as well as Professor. Inshallah, don't worry. As Professor is there. Just give a minute. That's it. So we will start sharp, or we'll just wait. Let the speaker join in. But the speaker has to join. How can we start without him? You can have testing for all. So you can, Professor Saab, you can mute all the people now. Yeah. Just a moment. Everyone except all. It's there. Okay, right now. Okay, once it's live on YouTube, I will reclaim the hosting rights, and then I will. Yes. This reclaiming thing is interesting. Yeah. So there are some messages here. The host meeting will not join in. They are not getting in. Can you check, please? Yes. Just wait for 2-3 minutes. I'll do that. Okay. That's why. Because in real life, once you lose something, you cannot reclaim it back. Yeah. It can be. It depends what kind of person you are dealing with. अच्छा, ठीक है. Faisal, if you could again reclaim it, and then I think we would be needing. Okay. अभी फिर से आपको चाहिए? हाँ, एक और मर्तबा कर दीजिए प्लीज फैसल रब नवाज को। जी अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह we have got more than 150 people. हाँ प्लीज, हाँ ठीक है। Okay. Thanks. So he is the host again. Yeah. Good, mashallah. The number of participants. People count is increasing. Yeah, it's great. 182. 182. डबल सेंचुरी तो हो जाएगी। अस्सलामुअलैकुम रब्बू भाई। आपके पास? ओ भाई अस्सलामुअलैकुम। क्या नहीं आया आपके पास? होस्ट हो गए बाप? Actually, I can see two Rab Nawaz over. ओके, छोड़ दीजिए, यूट्यूब छोड़ दीजिए बस। हाँ, उसको क्लोज करके देखिए प्लीज। कोई मुदित शर्मा ने हैंड रेस किया हुआ है।
I asked him what he wants, but it seems he has not seen the message. Maybe by mistake. Yeah. We also- Faisal, you could reclaim it, and then I think we will only be live on Facebook today. Okay, no issues. Okay, so I am the host again. Yeah. I am muting everyone right now, and then I think Professor Shakil has logged in, but he is with the screen name of Fatima S. So we can start. is Dilshad it? bhai? Yeah, he's there on Fatima S. Is I there? just saw him. Yeah, I saw him just now. Assalamualaikum Dilshad bhai, Sharik from New Zealand. वालेकुम सलाम शारिक भाई कि न्यूजीलैंड में कैसा मौसम है? वेलकम टू अभी तो बहुत न्यूजीलैंड ठंड है आल्सो। यहाँ पर। अभी तो बहुत ठंड है न्यूजीलैंड में तो। अभी तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Yeah, Professor Shakil is there already. Assalamu alaikum, Professor Shakil. जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम सर, वेलकम सर। Welcome to the webinar. Assalamu alaikum. Alhamdulillah, all the people from UK, USA, New Zealand, Japan, all are there now. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये पता नहीं कैसे सेटिंग चेंज हो गई, वो फातिमा एस करके आ रहा है। शकील भाई नाम बदलिए वापस। रीनेम कर लीजिए, रीनेम। नहीं, इत्तेफाक से पता नहीं कैसे बेटी ने कुछ आज इसमें किया होगा लैपटॉप में, इस वजह से आजकल LinkedIn का रीनेम कर लीजिए, So, रीनेम। since it's already 5 o'clock, so and our speaker is also here, so should we start the program? Yes, yes. Abbu bhai, assalamu alaikum. Just give 1 minute to Shakil Sahab to change his name. Okay. It's okay, doesn't make any difference. जी आप चेंज कर लीजिए जी। आप ही कर सकते हैं रीनेम उसको, कोई दूसरा नहीं कर सकता। आप ऊपर जाइए, उसको रीनेम करिए। Just give him 1 minute only. If I rename, will it be visible to all, or it will be visible only to me? No, to all. Fatima S. It will be visible to all, sir. Okay, let me see if I can do that. No, what you could do is you can give the permission to everybody to change their name. It's already there, I think. It's already there. It's okay, no problems at all. Whether he comes, he's logging in as Fatima is does not make any difference because I mean we know who the person is. Yeah, exactly. As long as You are right. video is on. Fine. So- आ गया, हो गया। Fine. So Now, let's okay, start. now your name is there. We can see. Dani bhai, please. Faisal Sahab, Yeah, so go ahead, please. we can begin now. Yes. Auzu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Very good evening to all our viewers, or rather participants of this webinar. On behalf of the Indian Forum for Education, Riyadh, it's my pleasure to welcome our speaker for the day, Professor Shakil Ahmed Samdani, and all our attendees to this international webinar on contemporary challenges and importance of legal education. Judiciary, along with the legislature and executive, forms the 3 pillars of democracy, and these powers interact in an equitable and balanced way to enable its proper functioning. To protect the ethos of liberty, equality, and fraternity of the Indian Constitution, it is imperative to have a strong and impartial judicial system. Legal awareness is the need of the hour, as it empowers the people to understand issues in light of the existing laws and helps to promote consciousness of legal culture. Legal awareness helps in enabling people to demand justice, accountability, and effective solutions at all levels. At the same time, legal studies as a career option has not been given much importance, as students and parents are more attracted by the career prospects of engineering, medical, and management courses. However, the present socio-political situation in the country and the ever-increasing regulatory role of the government in the form of new laws and taxation policies have led to a rising demand of lawyers in our country.
and law as a profession has become a coveted and lucrative career option. To talk more about this subject, we are honored to have with us today the master of the trade himself, Professor Shakil Ahmed Samdani. But before I invite Professor Shakil Ahmed, I would like to invite Dr. Dilshad Ahmed, the founder and president of Indian Forum for Education, Riyadh. Of course, Dr. Dilshad is a well-known personality in Riyadh, mainly due to his stint as the chairman of the managing committee of Indian International School, Riyadh, and his involvement in other education-related activities. Dr. Dilshad is actively engaged in scientific research at King Saud bin Abdulaziz University for Health Sciences. Dr. Dilshad will give a brief introduction about IFE and its activities, and will also introduce our eminent speaker for the day. Over to you, Dr. Dilshad. Thank you very much, Dr. Faisal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. A very good afternoon to everyone and Assalamu alaikum. On behalf of Indian Forum for Education, I take this opportunity to welcome Professor Shakil Ahmed Samdani, Dean Faculty of Law, AMU, Aligarh, India. I would like to welcome presidents of associations and dignitaries to our guests for being present here today. Please welcome them. It's my pleasure to welcome Janab Abdul Ghafoor Danish Saab and his active young man, Mr. Aqib Naeem. I am delighted to thank all the media persons who have joined us. I would like to begin by giving a brief introduction of IFE and describe what that we do here. The mission of IFE is to support the community in the broadest possible sense. I would like to emphasize only a few points. What is the objective of IFE? We organize career and guidance workshops on how to crack various competitive examinations such as NEET, JEE, staff selection, and CLET, etc. We also assist through admissions procedures of various colleges within India and abroad. Our summer activities are the distribution of textbooks and guides to needy and ease of arrangement to non-needy parents. We also invite subject experts to deliver lectures on job-oriented courses. Dear friends, today's interactive session titled Contemporary Challenges and Importance of Legal Education is one of the part of IFE activities. We, IFE, focus on maintaining quality education among students and people of any age, group, caste, creed, religion, and region. I repeat, my friend, again, the sole mission of IFE is to support the community in the broadest possible sense in education. IFE is also involved with some NGOs to provide financial help to students who are unable to pursue professional courses. My dear friends, I'll take a few minutes to introduce my team of IFE. They are very, very specialized and expert in their subjects and area of services. I would like to welcome and thanks to my team members by calling their names one by one. You can raise your hands. I am Dr. Dilshad, did PhD in medicinal chemistry, founder and president. Kindly raise your hand. I am not another one. Vice President of IFE is Mr. Shahzad Samdani, who is specialized in remote sensing. Dr. Faisal, who is hosting the program, is the secretary of IFE. In advisory board, we have the members, Mr. Salman Khalid, IT expert, he is IT manager in KSU. Dr. Shahroz Khan is expert in pharmaceutical sciences and a businessman. Mr. Aftab Nizami, plastic technology specialist. Professor Nasir Saab. Our members are, sorry, please control. Our members are Mr. Abdul Ghaffar, please put off your mic off. Yeah, it's okay. It's off. Members are Mr. Abdul Ghaffar, who is expert in economics, Mr. Ehsan Ahmed, scientific instruments expert,
Mr. Wasi Ahmad, IT expert. Engineer Shahzad Khan is telecom expert. Engineer Assam is also holding the president of Engineer Forum, is IT and logistic expert. Engineer Farhan Hashmi, president and Engineer Forum, sorry. Ahsan Zahir Saab, IT expert, and Mr. Zahir Iqbal. These are the soldiers who day and night work for the community in the field of education. Today, an interactive session will be delivered by Professor Shakil Ahmad Samdani Saab. His personality is well known in AMU and abroad. I would like to introduce him briefly. Dr. Professor Shakil Samdani Saab is a dean currently holding the dean position in Faculty of Law, Aligarh Muslim University, Aligarh, India. He is also coordinator, Aligarh Muslim University Center. He is also the member of Academic Council and AMU Court. He has published several research papers on national and international repute journal. More than 20 students he has assisted in LLM and PhD. More than 300 articles he has published in various languages, English, Hindi, and Urdu. He is holding seminars more than 300. Extension lectures is more than 100. Shakil Samdani Saab face is well known on many channels. His interview appeared on various TV channels like BBC World, Aaj Tak, Star, NDTV, Z News, Z Salam, ETV, India TV, Republic TV, ABV, and Islam TV Europe. His debate is very well known on national and international channels, on some Indian and abroad channels. He has been appointed as an expert and examiner, paper setter in many prominent institutes and universities, include UPSC New Delhi, Ambedkar University, Kashmir University, Rohilkhand, Jamia Millia, Bareilly, Indore, UP Public Service Commissions, Rajasthan Commission, Jharkhand, and many more. Instead of that, he has been holding a very responsible positions in Aligarh Muslim University. He has been a state officer in AMU from 2015 to 2018, appointed by Government of India. He has been coordinator, General Education Center of AMU, member of Media Committee of AMU, in charge of Law Society, and also Proctor of his Program Officer, National Services Scheme, coordinator in Sir Syed Bai Center in AMU, Aligarh. He has been his activity in curricular activities in so many things, which I will not explain here in detail, but few of them. He is a president of Sir Syed Awareness Forum for Aligarh. He is a coordinator of Muslim Reservation Movement. He is editorial advisor of Muslims and World Magazine. He is patron of Aligarh Madrasa Association. He is a chairman Dayar-e-Adab Aligarh. He is a member of All India Muslim Personnel Board. Currently, he has been awarded prominent awards. He has been taken as Life Golden Achievement Award 2020 by Social and Legal Research Foundation, Varanasi. Legal Expert Award by Kolkata. Allama Iqbal Award is given in Aligarh in 2019. Award in the field of law and social work by Bhopal. Award of Excellence by Islamia Group College, Deoband. Legal Excellence Award by Known Center, Pathshala, Class, Aligarh. Other than he has been involved in so many activities. So, my dear friends, please join hands with me to welcome Professor Shakil Ahmad Samdani Saab. Now I will request our guest speaker to deliver his talk. Professor Muhammad Shakil Samdani. Thank you very much. Welcome, sir. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम मोहतरम दिलशाद साहब, अब्दुल गफूर दानिश साहब, इंडियन फोरम फॉर एजुकेशन के जिम्मेदारान, मिडिल ईस्ट और हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बहुत से मुल्कों में जो जिसका जिक्र आपने किया, यूरोप में भी, यूएसए में, मेरे बहुत अजीज तलबा और तालिबात, जजेस साहिबान, वकला साहिबान,
और मुल्क के ज़िम्मेदारान हज़रात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं चूँकि वालेकुम अस्सलाम। और लोगों के नाम नहीं जानता, इसलिए मुझे माफ़ करेंगे, क्योंकि आज मेरा पहला इंटरेक्शन आप लोगों से है। और चूँकि दिलशाद साहब से बात होती थी और दानिश साहब से बात होती थी, इन दोनों लोगों का नाम याद है। मोअज़्ज़िज़ सामीन, सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि मुझे आपके दरमियान अपने ख़यालात, अपने एहसासात, अपनी महसूसात रखने का मौका मिला। अल्लाह ताला के बाद आप हजरात का शुक्र है, आपकी पूरी कमेटी का शुक्र है, इंडियन फोरम फॉर एजुकेशन रियास का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस नाजीज को इस अहम मौजू को बोलने का मौका दिया। मोअज़्ज़िज़ सामीन, जहाँ तक इस टॉपिक का ताल्लुक है, सुना है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो हिंदुस्तानी नहीं बल्कि बर्रे सगीर में, मिडिल ईस्ट में और पूरी दुनिया में इस वक्त इस लीगल प्रोफेशन की धूम मची हुई है। ये एक अलग बात है कि हमारा ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता, हमारी तवज्जो उसकी तरफ नहीं है, लेकिन आज के दौर में अगर आप किसी भी कम्युनिटी के एग्जिस्टेंस की बात लें, किसी कम्युनिटी के पॉलिटिकल सर्वाइवल की बात लें, उसकी डिग्निटी की बात लें, उसके ऑनर की बात लें, तो मैं समझता हूं कि ये लीगल प्रोफेशन टॉप 5 प्रोफेशंस में से एक आता है। क्यों आता है? आज आप देखिए कि दुनिया इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है कि हर चीज में लॉ का इन्वॉल्वमेंट है। अगर खुदा न खास्ता मैं कोई गलत बात बोल दूं यहां पर, तो लॉ इन्वॉल्व हो जाएगा कि शकील समदानी साहब ने ये गलत बात क्यों बोली और दिलशाद साहब ने ये गलत प्रोग्राम क्यों कराया, दानिश साहब ने क्यों इसको होस्ट किया या उनकी पूरी टीम ने क्यों होस्ट किया, इमीडिएट आ जाएगा। फैमिली में कोई डिस्प्यूट होता है, खुदा न खास्ता सिर्फ फैमिली में मियाँ बीवी और बच्चों के बीच में, वहां पर लीगल प्रोफेशन आ जाता है, लॉ आ जाता है। आप बाहर जा रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, खुदा न खास्ता आपकी गलती हो चाहे ना हो, वहां का लॉ। आप हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर ने सही आपको प्रेस्क्रिप्शन नहीं दिया, सही इलाज नहीं किया, लॉ हो गया। कि जिंदगी के जितने शोबे हैं, हर शोबे में लॉ का इन्वॉल्वमेंट है। और चूंकि आज के लोग इनटॉलरेंट हो गए हैं, इंतहाई सेल्फिश हो गए हैं, यानी जैसे कहते हैं कि आंख की शर्म मर गई है, और हम लोग आम जुबान में अपने यहाँ कहते हैं कि आंखों में सूअर का बाल पड़ गया है, यानी शर्म खत्म हो गई है। मैं थोड़ा अपनी लोकल बात में करूंगा, कोई उसमें आर नहीं है, जो हम लोग समझ में आती है बात लोकल, जो बात दिल से कही जाती है। यानी कि हम इनटॉलरेंट इतना हो गए हैं कि हम जरा सी बात पे अदालत में जाते हैं। तो ये बताइए कि क्या ये प्रोफेशन इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं? मैं ब्रिक बाई ब्रिक चलूंगा। जमीन की रजिस्ट्री आपने कराई, आप लोग अच्छा खासा धोखा खाते हैं अलीगढ़ में, लखनऊ में, दिल्ली में। ये आप फ्लैट ले लेते हैं, आप जमीन ले लेते हैं, और ऐसे ख्वाब इतना अच्छा डिजाइन करके वो दिखाता है आपको कंप्यूटर पे कि आप सोचते हैं कि बस जन्नत के बाद सबसे खूबसूरत कॉलोनी हमारी ये होगी। और जब उस जन्नत का मुजाहरा 4-5 साल के बाद होता है, तो आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि हमारी इतनी गाढ़ी कमाई को इन साहब ने इधर उधर कर दिया। आप कोर्ट जाते हैं, आप वकील के पास जाते हैं, आप पुलिस के पास FIR करते हैं कि हमारा पैसा डूब गया। तो व्हाट आई वांट टू से माय डियर फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, इज दैट द लॉ इज वन ऑफ द मोस्ट important professions nowadays. और उसका रीजन मैंने बताया, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द रीजंस ऑफ इट। इनटॉलरेंट बिहेवियर,
selfishness, complicated society, complicated laws, इनकम टैक्स लॉज, वेल्थ टैक्स लॉ, सब जगह इतना ज्यादा हो गया है कि हमारे लिए लॉ जिंदगी का एक अहम हिस्सा हो गया है। तो हम लोग इस पे ध्यान क्यों न दें? और अगर ये एक चीज बताऊं कि माइनॉरिटीज के लिए, बैकवर्ड सेक्शंस के लिए, अनप्रिविलेज्ड क्लास के लिए तो ये और इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि सारे रास्ते लॉ से खुलते हैं। अगर खुदा न खास्ता आपके साथ कोई ज्यादती हो रही है, आपको वकील की जरूरत पड़ेगी। अच्छे क्वालिफाइड वकील नहीं मिल रहे हैं आपको, आप कहां जाएंगे? दुनिया में जितने टॉप के लोग हुए हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग ज्यादा इसमें होंगे, जाहिर यहीं से लोग बाहर गए हैं, नोएडा ही हैं, बड़ी तादाद होगी। आप गौर कीजिए कि जितने टॉप के पॉलिटिकल लीडर्स रहे हैं, नेशन बिल्डर्स रहे हैं, नेशनल बिल्डर्स भी कहिए उनको, फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, उनमें कितनी बड़ी तादाद लॉयर्स की, स्टार्टिंग फ्रॉम गांधी जी, नेहरू जी, जिन्ना साहब, भीमराव अंबेडकर साहब, सब लॉयर्स थे, सब लॉ ग्रेजुएट्स थे, और ये अपने जमाने के टॉप के लॉयर्स थे, बड़े टॉप के लॉयर्स थे। आपने बचपन में देखा होगा जो लोग 50 साल के हैं या 50 के आसपास हैं और जरा सी भी थोड़ी सी एक किसी चीज को ऑब्जर्व करने की अल्लाह ने कैपेसिटी दी है, तो आप चले जाइए 40 साल 45 साल, जब मैं 80s की बात कर रहा हूँ, 80 के आसपास की, जब शहर में एक वेस्पा या लिबरेटा स्कूटर होना, चेतक होना बहुत बड़ी बात होती थी। और चेतक मुझे अच्छी तरह याद है, उस वक्त अगर डॉलर में आप देते थे तो चेतक 6 महीने में 2-3 महीने मिल जाती थी चेतक स्कूटर। अदरवाइज आपको अगर इंडियन रुपीज में देते थे, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, तो 6 महीना लगता था, साल भर। उस वक्त एक इमेजिन करिए कि एक आदमी सुबह 9:30 बजे एक रिक्शे पे काला कोट पहन के निकलता था, पान खाता हुआ, बहुत सी फाइलें रिक्शे के ऊपर रखी हुई है, साइकिल से एक आदमी पीछे पीछे जा रहा है, वो पूरे शहर में धीरे धीरे घूमता हुआ कचहरी जा रहा है। ये हमारे शहर के का जिक्र है। हर शहर में से 4-5 वकला होते थे और रास्ते भर लोग उनका सलाम करते थे। मैं थोड़ा बता रहा हूँ, थोड़ा बैक जाके, जब वो शाम को कचहरी से निकलते थे तो रास्ते से जो सबसे अच्छी दुकान होती थी वहां से मिठाई खरीदते थे, कहीं से समोसे खरीदते थे, कहीं से बिस्किट लेते थे, कहीं से चॉकलेट, और घर आते थे, रास्ते भर लोग सलाम। ये एक इम्पोर्टेंस वकील की इतनी ज्यादा सोसाइटी में होती थी। और आज भी सोसाइटी में अच्छी खासी रेस्पेक्ट एक वकील की, लॉ ग्रेजुएट की, एक अच्छे वकील, एक लॉयर की। चूंकि हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हैं, आप में से बहुत से लोग एमयू के फारिग हैं, कम से कम दिलशाद साहब फारिग हैं, दानिश साहब फारिग हैं, और बड़ी तादाद में फारिग होंगे लोग। आप ये बताइए कि हु आर द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? सर सैयद अहमद खान वाज द फाउंडर। सर सैयद अहमद खान ने क्या किया उसमें? उन्होंने ये देखा कि लीगल प्रोफेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है, लीगल प्रोफेशन। सर सैयद के बारे में आपको मैं बता दूं कि ही वॉज द जज स्मॉल काजेस कोर्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्ट होती थी, उसके वो जज थे। ही वॉज अपॉइंटेड एज, उनका ट्रांसफर हुआ कई जगह, व्हेन ही वॉज इन मुरादाबाद एंड बस्ती। एट दैट टाइम देयर वॉज ए ड्राउट, कहत पड़ गया वहां पर। इनके पास सारी जिम्मेदारी आ गई कि जो कहत हुआ है यहाँ के लोगों को रिलीफ दें। सर सैयद ने बहुत अच्छा काम किया, वो सारी चीज रिकॉर्ड में मौजूद है। उन्होंने वहां पर शफा खाने यानी हॉस्पिटल्स का पूरा इंतजाम देखा और ऑर्फनेज का। उनके इस काम से मुतासिर होके राजा जय किशन दास, जो उनके पॉलिटिकल ख्यालात से या जो भी ख्यालात से उनकी इमेज ठीक नहीं थी,
But when he visited these areas and the people praised him, I mean Sir Syed Ahmad Khan, then he had to change his mind. और उन्होंने खुद लिखा भी है, कहा भी है, और उसके बाद उनके वो दोस्त हो गए कि मैं सर सैयद के बारे में गलत समझता था और सर सैयद ने ये काम जो किया है वो अपने मजहब से उठ के किया है। उसके बाद क्या हुआ कि सर सैयद का जो लीगल बैकग्राउंड था उसकी वजह से क्या क्या चीजें उनको आसानियां हुई, क्या किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक 3 मेंबर कमेटी बनाई to decide the petitions relating to 1857 revolt, including the commissioner and the DM. He was one of the 3 persons committee. कमिश्नर कितनी बड़ी बात होती थी, एक कमिश्नर दो, पूरे यूपी में थोड़े से कमिश्नर होते थे। आज तो जगह जगह कमिश्नर है, कमिश्नर ही 1 दर्जन से ज्यादा हो गई है। उस वक्त का कमिश्नर, वो भी उस जमाने का, उस जमाने के हवलदार और दरोगा की क्या पोजीशन थी। कोतवाल तो समझ लीजिए आज के डीआईजी से ज्यादा अहम होता था कोतवाल। डेमोक्रेटिक दौर में उस तरह के पावर नहीं है। उस जमाने में सर सैयद वाज अपॉइंटेड एज ए मेंबर ऑफ दैट कमेटी, और उसका काम था कि जो लोग लुटे पिटे हैं उनके क्लेम्स को सॉल्व करे और दे। सर सैयद बहुत बोल्ड आदमी थे, बहुत बहादुर आदमी थे, लीगल नॉलेज भी बोल्डनेस आती है, और वो बताते खुद बहादुर थे, अच्छी फैमिली के थे। उनके फादर और सारे लोग मुगल कोर्ट में थे। एक बढ़िया, एक हम लोग आमतौर पे कहते हैं, वो उर्दू का वर्ड नहीं, लेकिन अब जाहिर है कि हिंदुस्तान में बहुत चीज, एक दबंग पर्सनालिटी थी, एक मजबूत पर्सनालिटी थी। उन्होंने इतना अच्छा क्लेम किया, क्लेम की सुनवाई की कि किसी शख्स के साथ, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जो हो, किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं हो पाई। और जिन लोगों का नुकसान हुआ था उसको सर सैयद ने प्रूव किया कि दिस वाज ड्यू टू द रॉन्ग पॉलिसीज। जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज थी उनकी गलती की वजह से इन लोगों को नुकसान हुआ, एंड ही वाज इंस्ट्रूमेंटल इन डिक्लेयरिंग द कंपेंसेशन फॉर द इंडियंस, आई मीन द हिंदूज और मुस्लिम्स। ये एक लीगल बैकग्राउंड की वजह से था, बिकॉज ही वाज ए वेरी गुड मतलब लीडर, किसी चीज को प्लीड बहुत अच्छा। अब उसके बाद आप देखिए, इसी लीगल बैकग्राउंड की वजह से व्हाट हैपेंड, ही वाज अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ, आई मीन लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो वायसराय की लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी, आज के हिसाब से समझ लीजिए पार्लियामेंट थी। ही वाज अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ वायसराय। अगेन ही वाज अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ द गवर्नर्स काउंसिल ऑफ NWP प्रोविंस, जो आजकल यूपी कह सकते हैं आप, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस उसका नाम था। ही वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ द रॉयल कमीशन, ऑल ड्यू टू द लीगल बैकग्राउंड। लीगल बैकग्राउंड की वजह से उनको हर जगह एंट्री हुई, और उस एंट्री की वजह से सर सैयद अहमद खान ने पूरे इंडिया का बहुत भला कराया। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव हर्ड अबाउट द ICS एग्जामिनेशन। आजादी से पहले उसका नाम था ICS एग्जामिनेशन, एंड दैट एग्जामिनेशन वाज हेल्ड इन यूके। इंडिया में उसका एग्जाम का सेंटर नहीं था, इंटरनेट तो नहीं था कि इसको ऑनलाइन एग्जाम कर लें, और एज 21 साल थी। सर सैयद ने ये प्लीड किया कि इट इज वेरी हार्ड, वेरी डिफिकल्ट फॉर द इंडियंस टू गो टू लंदन एंड appear in the examination, and in this, due to this rule, the poor people, the ordinary people or the middle class was not able to appear in the examination. Due to the efforts of Sir Syed Ahmad Khan, his legal background, his commitment to the community, his farsightedness, इंडिया में उसका एग्जाम शुरू हुआ, और 21 साल से एज बढ़ा के 23 साल की गई, कि हिंदुस्तान के हिसाब से 23 साल। जज थे, लीगल बैकग्राउंड था, और आर्गुमेंट का पावर अल्लाह ताला ने दिया था, जो इतने बड़े बड़े काम उन्होंने किए। उसके बाद एक बिल सर सैयद के जमाने में आया, विच इज कॉल्ड द एल्बर्ट बिल। मैं ये कुछ चीजें ऐसी मैं बता रहा हूं जो आमतौर पर जो लोग सर सैयद डे वगैरह में बोलते हैं या सर सैयद पे, एक जनरल सी बात होती है, थोड़ा सा डीप बात है, आप हमें माफ करेंगे, लेकिन ये जरूरी है, क्योंकि ये आमतौर पे तकरीरों में ये बात नहीं आ पाती।
मैंने कोशिश की कि थोड़ी सी नए अंदाज से आपको बताऊं सर सैयद के बारे में। वो लॉ पे फिर हम आएंगे पूरा, आप घबराइएगा नहीं कि उसको स्किप नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको स्किप नहीं करूँगा। इसके बाद क्या हुआ कि जॉन एल्बर्ट एक कमीशन बना था जिसे एल्बर्ट कमीशन कहते हैं। इन दैट कमीशन उस वक्त रूल ये था कि एज फार एज द इंडियन जजेस आर कंसर्न, दे कैन ओनली ट्राई द सिविल केसेस इन विच द ब्रिटिशर्स एंड द इंडियंस आर पार्टीज। यानी अगर हिंदुस्तानी का और अंग्रेजों का मुकदमा आपस में झगड़ा है सिविल मैटर्स में, तो हिंदुस्तानी जज हो सकता था, बट एज फार एज द क्रिमिनल मैटर्स वे आर कंसर्न, इंडियन जजेस वर नॉट अलाउड। अरे भाई, लाट साहब को आप सजा दे देंगे हिंदुस्तानी, रियाया माँ बदौलत को सजा दे देगी। बहुत हंगामा उस पे होता था। सर सैयद ने प्लीड किया, परसुएट किया, और इसके बाद यह हुआ कि इन बोथ द सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स इंडियन जजेस हो सकते थे, जिसमें अंग्रेज भी पार्टी होता था। ये कितना बड़ा काम है, ये कोई मामूली काम नहीं है। इसीलिए एक शेर सर सैयद के ऊपर एट्रीब्यूट कर दूं, के लिए तो कोई भी शेर फिट नहीं है, इतने बड़े आदमी थे, लेकिन फिर भी सर सैयद अल्लाह रहमा पे एक शेर फिट हो रहा है। वो हमारे जौनपुर के एक शायर हैं, शायर जमाली साहब, उनका इंतकाल हो गया। हमारे हम लोग जाते थे घर वर उनके, तो उनका एक शेर है जो विच आई एम एट्रीब्यूटिंग टू द सर सैयद अहमद खान। मुझको तारीख में महफूज किया जाएगा, मुझको तारीख में महफूज किया जाएगा, मैं सहीफा हूं कोई रोज का अखबार नहीं। ये शेर उन पे सादिक आता है। अब फिर मैं वापस आ रहा हूं अपने जो मेन मौजू, तो सर सैयद की बात आ गई, और मुझे ये बताना जरूरी था कि सर सैयद कितने बड़े लॉ के आदमी थे। उनके बेटे जस्टिस महमूद इतने बड़े हाई कोर्ट के जज हुए कि आज तक जस्टिस महमूद की रूलिंग को हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ऑनर किया है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस द रूलिंग गिवन बाय जस्टिस महमूद is honored by the Supreme Court of Pakistan, Bangladesh and India. अभी तक ऑनर की जा रही है। और इतने बड़े जज वो हो गए थे कि इंग्लिश जजेस परेशान थे उनके फैसलों से। आप उनका कोई फैसला पढ़ लीजिए, बहुत देर तो लगेगी अंग्रेजी समझने में, इतनी अच्छी और बेहतरीन, शानदार, क्योंकि ये क्लासिकल बहुत अच्छा थे। तो बहरहाल ये एक अलग बात है कि उन्होंने रिजाइन कर दिया इसी वजह से। अब इसके बाद आप आइए, लीगल प्रोफेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। हम लोग ज्यादातर आई एम मुस्लिम, आप सब लोग भी मेजॉरिटी मुस्लिम्स की है। इसके बारे में चलिए उस इश्यू पे बाद आएंगे, पहले आप सुनिए इंडिया की पोजीशन। इस वक्त इंडिया में देयर आर अबाउट 2 मिलियन लॉयर्स, 20 लाख लॉयर हिंदुस्तान में हैं, रजिस्टर्ड एडवोकेट्स हैं 20 लाख, ठीक है। उन 20 लाख में तकरीबन 2 लाख से ज्यादा यूपी के हैं, 1,18,000 बिहार के हैं। ये तादाद होने के बावजूद भी स्टिल वी आर शॉर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट लॉयर्स। इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद भी, चूंकि मुल्क भी बहुत बड़ा है, इस वक्त 138 करोड़ लोग हैं, 130 करोड़ पीपल आर लिविंग इन इंडिया। ये 20 लाख की तादाद भी बहुत कम है, और क्वालिटी वाइज तो बहुत ही कम है। क्वालिटी वाइज तो इतनी कम है कि मैं आप उसको गिन सकते हैं उंगलियों पर। आप एक अच्छा वकील ढूंढने जाएं तो पता चलेगा कि शहर में चंद वकील हैं। सुप्रीम कोर्ट में मुश्किल से मान लीजिए अच्छे वकील की तादाद देखें तो मुश्किल तमाम 25 से 30 वकील हैं। लेकिन पिछले 25 साल में a lot of difference legal education में आया, and the credit goes to one of our alumnus of the faculty of law Aligarh Muslim University, Professor Madhav Memon. He gave the concept of 5 years integrated course. जो बच्चे सुन रहे हो, जो 12th में हो या
11th में हो या वो ज़रूर से सुने। अगर घर में कोई बच्चा है तो बच्चे से कहे कि बेटा आज शकील समदानी अंकल की वजह से एक आधा घंटा तुम हमको दे दो, इंशाल्लाह ज़िंदगी की बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आधा पौन घंटा लाइफ में कोई मान ही नहीं रखता। हम लोग घंटों घंटों जो है व्हाट्सएप पे इधर उधर बिजी रहते हैं। बच्चों से कहिए कि बेटा बैठ लो, क्योंकि कभी कभी कोई बात जहन में ऐसी उतर जाती है जो ज़िंदगी भर नक्श नहीं होती, नक्श रहती। जैसे इत्तेफाक से शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सभी ने सुना है, हम सब उनके मुतक़िदीन हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग थे। उनका वाक़या सभी ने सुना होगा, बस मैं रिपीट करना चाहता हूँ, शायद किसी बच्चे ने सुना हो कि उस ज़माने में तो चोर डाकू बहुत होते थे। जैसे उर्तरल में आप देखते हैं कि काई ट्राइब के आगे सब चोर बदमाश घूम रहे हैं, डकैत, कोई मार रहा है, कोई छीन रहा है। काफिले में कोई सिक्योरिटी नहीं होती थी। तो एक बार वो पढ़ने के लिए जा रहे थे तो उनकी वालदा ने कहा कि बेटा कुछ अशरफियाँ रख लो, जहाँ पढ़ने जा रहे हो वहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो ले लेना, इस्तेमाल कर लेना। उन्होंने जो है, उनकी वालदा ने खूब अच्छी से सदरी में अशरफियाँ से सिल दी। खतरा, यही जो खतरा था, रास्ते में डाकुओं ने घेर लिया, लूट मार शुरू कर दी। एक डाकू इनके पास आया, बच्चे से थे, छोटी उम्र के, पूछा कि तुम्हारे पास कुछ है? इन्होंने कहा हाँ मेरे पास अशरफी है। डाकू ने कहा कहाँ है? उनका देखो, डाकू ने जेब में हाथ डाला इधर उधर, कहीं अशरफी नहीं थी। डाकू ने कहा तुम मुझसे मजाक करते हो, तुम बहुत बदतमीज बच्चे हो, चलो तुम्हें सरदार के पास ले चलते हैं। वो डाकू इनको लेके शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को लेके गया उनके पास और कहा सरदार ये मजाक उड़ाता है हमारा, बदतमीजी कर रहा है। सरदार ने पूछा क्या बात है? कहने लगे ये कहता है हमारे पास अशरफी है और मैंने सारा इसका पैंट शर्ट जो भी उस जमाने का लिबास था सब ढूंढ लिया, नहीं है कहीं अशरफी। तो डाकू ने कहा कि अभी तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी, बताओ कहाँ अशरफी? इन्होंने अपना जो पहने हुए थे कपड़ा वो उतारा, अंदर माँ ने इतनी अच्छी तरह सिली थी कि पता ही नहीं चल रहा था, उसको फाड़ के दिखा दिया कि ये हमारे पास अशरफी। तो डाकू ने कहा, डाकू सरदार ने, ये बताओ जब अशरफी दिख नहीं रही थी, इसने जामा तलाशी ली तब भी नहीं मिली, तब भी तुमने क्यों ये बता दिया? तो गौर से सुनिए, इस कोट को ज़हन में रखिए हमेशा कि मेरी वालदा ने कहा था कि बेटा कभी झूठ मत बोलना, इसलिए मैं कभी झूठ नहीं बोल सकता था। मेरे पास अशरफी थी। एक छोटी सी बात पूरी जिंदगी के लिए पकड़ ली उन्होंने और आज लाखों नहीं करोड़ों मुत्तकीन हैं। इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि बच्चों को बैठा लीजिए अगर आसपास हो कि बेटा थोड़ी देर अंकल की बात, समदानी अंकल की बात सुन लो, शायद कोई बात उतर जाए। अब मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। इस वक्त हमारे यहाँ इंडिया में जो 5 years कोर्स है, 5 years BLLB कोर्स, लॉ का कोर्स है, इंटीग्रेटेड कोर्स है, यानी पहले 1 साल में हम हिस्ट्री, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश पढ़ाते हैं 5 सब्जेक्ट और एक और 6 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। बाकी 4 साल हम लॉ पढ़ाते हैं, लेकिन अलग अलग नहीं हो सकता कि हम 1 साल कहीं और कर लें, 4 साल यहाँ नहीं। ये इंटीग्रेटेड कोर्स हमारा है। ये इसका कॉन्सेप्ट उनका इंतकाल हो गया, प्रोफेसर माधव मेनन साहब ने दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने, हम लोगों ने बहुत पहले ही, हम 1997 में स्विच ओवर कर गए थे। हमारे यहाँ पिछले 23 साल से ये कोर्स चल रहा है। इस कोर्स के आने के बाद, इस सिलेबस के आने के बाद ड्रास्टिक चेंजेस आए और गवर्नमेंट ने पूरे मुल्क में नेशनल लॉ स्कूल्स यूनिवर्सिटियां बनाई। बड़ी तादाद में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटियां, स्कूल्स यूनिवर्सिटी बनाई गई, जिनकी तादाद अब 23 है। देयर आर 23 नेशनल लॉ स्कूल्स इन इंडिया। वो यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला हुआ है और बहुत ही हाई क्वालिटी की पढ़ाई होती है। हाई इस लिहाज से भी है कि उसकी फीस बहुत ज़्यादा है, उसमें आम स्टूडेंट नहीं पढ़ पाता, जाहिर है कि बहुत हैवी फीस है, लाखों में। उसी क्वालिटी की एजुकेशन हम अल्हम्दुलिल्लाह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में देते हैं और देते रहेंगे। चंद हज़ार रुपए में हम अलीगढ़ में वो एजुकेशन दे रहे हैं। इसके आने के बाद ड्रास्टिक चेंज आया। बहुत ही क्वालिफाइड, बड़े स्मार्ट बच्चे अब पूरी हिंदुस्तान में निकल रहे हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर में जा रहे हैं, जो ADR में जा रहे हैं, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो होता है उसमें जा रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, हाई कोर्ट में जा रहे हैं, बहुत ही अच्छे लड़के जा रहे हैं। अगर कोई बच्चा इसमें जाना चाहता है तो वो ये ना समझे कि पुराने ज़माने के वकील की जो एक इमेज थी
कि बेचारा जो है वो जाता है और उसको पैसे नहीं मिलते हैं, पैसे नहीं मिलते हैं उसको और बहुत परेशान रहता है। आज तो स्काई इज द लिमिट बच्चों से थोड़ा मुखातिब हो रहा हूँ, स्काई इज द लिमिट है बच्चों। आजकल इतनी आपके जहन में दो ही चीज आती होगी, या तो वकील साहब बन के प्रैक्टिस करेंगे या वो जज बन जाएंगे। अरे भाई आप पूरे वर्ल्ड में जाके देखिए, मैरीटाइम लॉ, बैंक्रप्सी लॉ, बिजनेस लॉ, सिविल राइट्स लॉ, क्रिमिनल लॉ, इंटरटेनमेंट लॉ, जो हमारे दानी साहब एडवर्टाइजमेंट वगैरह करते हैं, कहीं ना कहीं इसकी पकड़ में आते होंगे। इंटरटेनमेंट लॉ, इन्वायरमेंटल लॉ। अभी आप फैक्ट्री लगाने जाइए, फौरन कहा जाएगा कि साहब इन्वायरमेंट का परमिशन लेके आप आइए। जबरदस्त जो बड़े अफसर हैं पोल्यूशन बोर्ड वगैरह में, वो इतनी ज्यादा तोहफा देते हैं, तोहफे को समझ लीजिए विद इन ब्रैकेट, कि अगर 6 महीना कोई बन जाए तो 2-3 पुश्तों के वारे न्यारे हो जाते हैं, क्योंकि तोहफे की रकम 40 करोड़, 50 करोड़, 20 करोड़ होती है कि बस एक सिग्नेचर दे दीजिए कि पोल्यूशन बोर्ड बिल्कुल सही है, यहाँ कोई जंगल को खतरा नहीं, किसी को खतरा नहीं है, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़। यहाँ बात दिल की कर रहे हैं, कोई इसमें छिपाना थोड़ी है, जो रियलिटी है सब लोग जानते हैं। वहाँ ना के बराबर होगा, यहाँ सभी लोग जानते हैं क्या है। फैमिली लॉ, हेल्थ लॉ, इमिग्रेशन लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, इंटरनेशनल लॉ, लेबर लॉ, मिलिट्री लॉ, पर्सनल इंजरी लॉ, रियल एस्टेट लॉ, टैक्सेशन लॉ। अब बताइए दानी साहब, कितनी वाइड फील्ड है ना? कितनी वाइड फील्ड है, दुनिया खुली हुई है। कई जिंदगियां चाहिए 4-5 ब्रांचेस में जाने के लिए, एक ही जिंदगी में आप नहीं जा सकते, जिस फील्ड में जाइए। फैमिली डिस्प्यूट्स तो इतने बढ़ रहे हैं, आज से 15 साल पहले दिल्ली में, सिर्फ दिल्ली में 15 ईयर्स, 1 लाख केसेस मियां बीवी के झगड़े के थे, फैमिली डिस्प्यूट 1 लाख केसेस। आज कम से कम मैं बिल्कुल यकीन से कहता हूं कि सिर्फ दिल्ली में, मेट्रो सिटी में कम से कम 5 लाख केसेस फैमिली डिस्प्यूट्स। बराबर मेरे पास काउंसलिंग के लिए आता है। हम लोग काउंसलिंग प्राइवेट काम नहीं करते हम लोग, लेकिन जैसे कि आपने सीवी हमारी दिलशाद साहब ने पढ़ी है, मैं थोड़ा सोशल वर्कर भी हूं, बहुत से काम ऐसे भी करता हूं जिसमें पैसे नहीं मिलते, इसमें कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन उससे ज़मीर भी खुश होता है और मालिक तो खुश होगा, क्योंकि हम उसके मानने वाले हैं जिसने कहा है कुरान में कि इफ एनीवन हैज डन an atom's weight of good shall see it, and if anyone has done an atom's weight of evil shall see it. अगर किसी ने एक जर्रे के बराबर भी नेकी की है तो मालिक का वादा है कि मैं उसका अज्र दूंगा क़यामत के दिन। और किसी ने एक जर्रे के बराबर गुनाह किया है, गलत काम किया है, तो अल्लाह का वादा है, दुनियावी लोगों का वादा नहीं, उसको सजा दी जाए। तो आप ये समझ लीजिए कि ये इतना इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है कि उसमें स्काई इज द लिमिट। जिन लोगों का साबका वकीलों से पढ़ा होगा, दिल्ली में बड़ा केस होगा, तो आप समझ लीजिए कि वो 15 मिनट बात करने के मिनट के हिसाब से पैसे लेते हैं। 10 मिनट्स के इतने, 15 मिनट। बच्चों को इसलिए बता रहा हूँ बेटा कि पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर पैसा नहीं होता तो ये आप वेबिनार कैसे होस्ट करते, ये इंटरनेशनल लेक्चर कैसे करते, सारी चीज़ें बेटा, पैसा भी बहुत ज़रूरी है बच्चों। एकदम सूफी वाला मजहब नहीं है हमारा, है दौलत हासिल करने का भी हुक्म दिया गया। जब दौलत होगी तभी तो आप गरीबों पे खर्च करेंगे, दौलत होगी तभी तो कमजोरों की मदद करेंगे। आपके यहाँ तो शायद प्रॉब्लम नहीं हो, इधर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में गरीब कितने लोग हैं, भूखे मरे लॉकडाउन में, कितने लोगों को नुकसान था। दौलत होगी तो लोगों ने जन्नत खरीद ली। जिसके पास दौलत रही होगी और 2 महीना 3 महीना उसने लॉकडाउन में खाना बंटवाया होगा, यकीन मानिए कि उसने जन्नत खरीद ली। इसी तरह बच्चों सुनो, लीगल प्रोफेशन ऐसा है कि अगर एक फैसला तुम सुप्रीम कोर्ट से करा दो और अगर 10 करोड़ लोगों को फायदा होगा तो ता क़यामत तुम्हें कब्र में उसका सवाब मिलेगा 10 करोड़। जैसे खुला एक चीज है फॉर मुस्लिम फैमिली, सुन लीजिए,
खुला एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है डाइवोर्स का इस्लामिक लॉ में, और बहुत ही रेशनल प्रोविजन है, बहुत ही बढ़िया प्रोविजन है। अब दुनिया ने जाके अडॉप्ट किया है उसको, लेकिन इस्लाम ने 14 साल पहले दे दिया था। खुला के हिंदुस्तान में खुला आमतौर पे कोर्ट से यूं नहीं मिल पाता कि 19वीं सेंचुरी के लास्ट की एक रूलिंग है जिसमें अंग्रेज जज ने यह कह दिया था कि खुला के लिए हस्बैंड की कंसेंट जरूरी है, जबकि अल्लाह के रसूल के ज़माने में भी, उसके बाद खुलफाए राशिदीन के ज़माने में भी कई केसेस में, बहुत लंबा हो जाएगा, टाइम मिले तो बताऊंगा, अगर सिर्फ ये काफ़ी था कि लड़की या औरत कह दे कि मैं अपने शौहर के साथ नहीं रह सकती और अगर मुझे ज़बरदस्ती की गई तो हुदूदुल्लाह क्रॉस करने का खतरा है, यानी जो अल्लाह की लिमिट्स हैं उसको क्रॉस कर जाऊंगी। लिमिट में ये भी हो सकता है कि वो कहीं भाग सकती है, लिमिट में ये भी हो सकता है कि वो कत्ल कर सकती है, लिमिट में ये भी हो सकता है कि वो और भी कोई चीज करे। तो लेकिन एक गलत रूलिंग की वजह से कि कंसेंट ऑफ द हस्बैंड इज मटेरियल, लीगली नहीं मिल पाता। हाँ, दाउल कज़ा से मिल जाता है हिंदुस्तान में। जो लोग लॉ अबाइडिंग फैमिलीज हैं, जो अल्लाह से डरती हैं, मान लेती हैं। अगर लड़की कहती है कि हमें नहीं रहना, भेज देती है। आज अगर कोई लड़का, मेरा बेटा भी लॉ फाइनल ईयर में है, हो जाता, लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाया, कोरोना की वजह से। आज मैं 30 साल से पढ़ा रहा हूं, हमेशा खुला के ऊपर, पॉलीगैमी पे, ट्रिपल डिवोर्स पे कई दिन तक मैंने लेक्चर दिया, और मैंने कहा अगर मेरे एक बच्चे ने भी सुप्रीम कोर्ट जाके इस शर्त को खत्म करा दिया तो इंशाअल्लाह उसके तो गुनाह माफ होंगे ही, मेरे भी माफ होंगे, करोड़ों लोगों को। जस्टिस बालकृष्णन साहब, आज हमारी फैकल्टी में उनका वेबिनार था सितंबर में, जब मैं 30-40 दिन के लिए डीन बन गया था, ऑफिशिएटिंग डीन था, पहली बार बालकृष्णन साहब को मैंने बुलाया, बहुत ही शानदार लेक्चर दिया। बालकृष्णन साहब ने एक जजमेंट दिया था मिड डे मील का, मिड डे मील, जिसकी वजह से करोड़ों बच्चे, गरीब बच्चों को हिंदुस्तान में मिड डे मील मिल रहा है। अरबों नहीं खरबों रुपया मुअज़्ज़िज़ सामीन ख्वातीन हजरात गवर्नमेंट खर्च करती है। तो आप ये बताइए कि एक जजमेंट से करोड़ों लोगों की किस्मत बदल सकती है। मुझे अच्छी तरह याद है कि 1995 या 96 में इलेक्शन हो रहा था, 10 लाख लोगों को इलेक्शन से डिबार्ड कर दिया गया था। They were snatched their right to vote. One person petitioned before जस्टिस अहमदी। जस्टिस अहमदी ने कलम के 2 लफ्ज के 2 सेंटेंस के ऑर्डर से उसको खत्म कर दिया और 10 लाख लोगों ने वोट दे दिया। ये है इंपॉर्टेंस लॉ की, ये है इंपॉर्टेंस। ये मामूली प्रोफेशन नहीं है। दुनिया में जितने लोगों ने लीड किया है उन्होंने लीगल प्रोफेशन के थे। अब आइए जरा सा कुरान में आपको बताएं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ जस्टिस। देखिए कुरान में अल बकरा में, सूरह बकरा में है, एंड डू नॉट कंज्यूम वन अनदर्स वेल्थ अनजस्टली एंड सेंड इट इन ब्राइबरी टू द रूलर्स इन ऑर्डर दैट दे माइट एड यू टू कंज्यूम ए पोर्शन ऑफ द वेल्थ ऑफ द पीपल इन सिन while you know it is unlawful। कुरान में सूरह बकरा में कहा जा रहा है। दूसरी चीज सुनिए, अल निसा में वर्स नंबर 58, indeed Allah commands you to render trust to whom they are due and when you judge, गौर करिए, when you judge between people to judge with justice। जब आप जज करें पब्लिक को, 2 लोगों में, तो जस्टिस, इंसाफ का मामला करें। excellent is that which Allah instructs you, indeed Allah is ever hearing and ever seeing। ये सूरह अल-निसा में वर्स नंबर 58 है। और सुनिए सूरह अल-निसा में वर्स 135, इसके बाद एक और देके फिर आगे बढ़ जाएंगे। ओ यू who have believed, be persistently standing firm in justice, witness for Allah even if it is against yourself, our parents and relatives। अगर पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो, दूसरी तरफ से रिलेटिव्स का भी मामला हो, तब भी अल्लाह का हुक्म है कि आप इंसाफ करें। वेदर वन इज रिच और पुअर, अल्लाह इज मोर वर्दी ऑफ बोथ। सो फॉलो नॉट पर्सनल इंक्लिनेशन लेस्ट यू नॉट बी जस्ट, एंड इफ यू डिस्टार्ट योर टेस्टिमनी
or refuse to give it to it, then indeed Allah is ever with what you do acquainted. ये 3 मैंने, वैसे तो बहुत सारी जस्टिस के ऊपर वहां पर हैं, 3 मैंने आपको बताई हैं। और एक बहुत मशहूर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाकया है, उनके ज़माने का वाकया है कि बनु मखजूम की एक औरत थी जिसका नाम फातिमा था, जिसका नाम फातिमा था। बहुत बड़ा कबीला था, नया नया इस्लाम में दाखिल हुआ था। उनकी उस फातिमा बच्ची ने, जो लड़की थी, उसने चोरी कर ली। वहां से लोग सिफारिश लेके आ गए अल्लाह के रसूल के साथ कि साहब इसको माफ़ कर दीजिए, ये बहुत बड़े ट्राइब की बेटी है, बहुत अभी नया नया ट्राइब इस्लाम में आया है, इसको माफ़ कर दीजिए। तो अल्लाह ने के रसूल ने क्या बात कही जो क़यामत तक के लिए एक डायरेक्टिव हमारे लिए हो गया कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसके हाथ काटने का हुक्म देता। हम लोग आमतौर पर बड़ी जल्दी माफ़ कर देते हैं जब दूसरों का मामला हो, और अगर अपना 1 रुपया भी हो तो चाहते हैं कि गर्दन काट लें। ये डबल स्टैंडर्ड है। मैं देखता हूँ जहाँ पे रह रहा हूँ कि अगर सरकारी घाटा हो रहा है तो कोई बात नहीं, सब माफ़ी है, अरे बच्चे हैं माफ़ कर दो, और अपना है तो उसके सर कलम कर दो। ये अल्लाह के नहीं चलेगा, यहाँ तो हो सकता है चल जाए। मोज़िज़ सामीन, नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट I was telling you about Indian position. Law colleges हमारे इंडिया में, मैंने बताया कि there are 2 million advocates, registered advocates, 2019 तक की रिपोर्ट है। उसके बाद there are 1170 law colleges, out of which 807 are private and 363 are government colleges. और इसमें 23 which I have already told you are the national law universities. हमारे एग्जाम 2 तरह से होता है, क्लैट के हिसाब से होता है, CLAT कंबाइंड लॉ टेस्ट होता है, ठीक है, एडमिशन टेस्ट। यह यूनिवर्सिटी लेवल पे होता है। बच्चों को बता रहा हूं, अगर कोई जाना चाहे जहन में रहे कि क्लैट में क्या होता है, कि क्लैट में 2 घंटे का पेपर होता है एंड 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें इंग्लिश, लीगल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स होता है। ये 6 चीजें हैं, 150 सवाल हैं, 2 घंटे में आपको करने हैं। अगर आपने क्लियर कर लिया, और यूनिवर्सिटी लेवल पर जैसे हमारी यूनिवर्सिटी अपना कराती है, हमारी यूनिवर्सिटी के बारे में भी सुन लीजिए कि हमारा भी अच्छा खासा स्टैंडर्ड है माशाल्लाह, और विद इन 10 हम बहुत दिनों से रहते हैं, कभी 8th है, कभी 6th है, कभी 4th है, कभी 2nd है, हम रहते हैं उसमें। अभी पिछले साल हमारी पढ़ाई हुई 26 स्टूडेंट्स ने जो है यूपी जुडिशरी को क्वालिफाई किया, सिविल जज 2 बन गए, वो 26 बच्चे हमारे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप हजरात की इत्तला के लिए अर्ज है कि सैकड़ों बच्चे जो हैं इस वक्त हिंदुस्तान में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के और हम लोगों के पढ़ाए हुए हैं। इस वक्त बड़ी तादाद में इस वक्त हमारे पढ़ाए हुए, मैं तो बहुत जूनियर हूँ, सीनियर लोगों के, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे न जाने कितने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं। हमारे क्लास फेलो सब डिस्ट्रिक्ट जज हैं, और कुछ जूनियर हमारे, 1-2 जूनियर अब 1 आध महीने में हाई कोर्ट के जज होने वाले। तो ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है, खासतौर से गर्ल्स बच्चियां। सुनो तुम, लड़कियों के लिए देयर इज 30% रिजर्वेशन फॉर द गर्ल्स। उनके लिए और सिंपल होता है, बच्चियां आमतौर पर घर में बेचारी पढ़ती रहती हैं, जरा सी मेहनत करती हैं तो वो क्वालिफाई कर जाती हैं। उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, जज की कुर्सी पे बैठी हैं, कोई गड़बड़ कोई करेगा तो डिफामेशन में आ जाएगा, सारी चीज़ों में आ जाएगा। ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है। हमारे एएमयू के बारे में बता दूं क्योंकि बहुत से लोगों को मालूम नहीं रहता, हमारे मेन कैंपस में 120 सीट्स है, मुर्शिदाबाद और मलापुरम सेंटर्स में 60 है, 120 सीट्स मिला के हुई, यानी 240 सीट्स एएमयू और एएमयू के सेंटर्स में। ये सेंटर्स बनाए गए थे प्रोफेसर पी.के. अब्दुल अजीज साहब के ज़माने में, हु वाज आवर वाइस चांसलर फ्रॉम 2007 टू 2012। बहुत काम किया उन्होंने, सेंटर्स बनवाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह उस सेंटर्स में सैकड़ों लोग जो हैं काम कर रहे हैं, सैकड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं। उन सेंटर्स में MBA भी है, एजुकेशन यानी B.Ed भी है, और लॉ भी है, तो वहाँ काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ ओपन इंटरेस्ट होता है,
आप जानते हैं कि बहुत ट्रांसपेरेंट हमारे यहाँ टेस्ट होता है, तो अगर आपका बच्चा उससे पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। अब एक चीज मैं आपसे पूछूंगा, दानिश साहब ये बताइए कि मेरे पास कितना टाइम है ताकि मैं अपने हिसाब से कंक्लूड करूँ। दानिश साहब You can go for 10 minutes more, sir. It's okay. जी जी, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अब एक चीज आप सुनिए, 10 मिनट के बाद फिर क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। रोक दूं क्या मिडिल ईस्ट की पोजीशन है, मिडिल ईस्ट में भी कुछ बच्चे काम करना चाहेंगे, हमारे पास कुछ रिपोर्ट मिडिल ईस्ट की हो गया दानिश भाई। सऊदी अरब, नहीं आप नहीं होते तो नहीं हो पाता मेरे आप इन सब जगह पर जो है मुझे बच्चों पे यकीन नहीं था। अब ये फैसल तरफ एक्सपर्ट हो गए। जो रिपोर्ट्स हैं, खास तौर से ये अरब न्यूज को एक साहब ने ये बताया है, लॉ फर्म ओनर एंड लॉयर मजीद करोब साहब हैं कोई, उनका ये कहना है कि इफ यू लुक एट द पॉपुलेशन नंबर ऑफ केसेस बिफोर द कोर्ट्स, मिडिल ईस्ट की बात बता रहे हैं, nearly the specialized courts at the Ministry of Justice, the administrative courts in the Ombudsman, and more than 100 judicial commissions found in various ministries and governmental bodies, and compare these two numbers with the number of companies and institutions and also with the size of the economy. अब वो कह रहे हैं, we realize that the number of lawyers is insufficient to meet and cater for these business needs. यानी मिडिल ईस्ट में भी, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो कुवैत हो, चाहे बहरीन हो, ओमान हो, यहाँ भी क्वालिफाइड लॉयर्स की बहुत कमी है। और पिछले साल इन्होंने सऊदी अरब में जो है, जो रजिस्टर हुए हैं जो वकील, 6000 इस वक्त जो है टोटल वहाँ पर जो है 6270 लॉयर्स हैं, जिसमें 487 फीमेल लॉयर्स। फीमेल लॉयर्स भी बड़ी तादाद में इसमें ज्वाइन कर रही हैं, यूके में हर जगह जो है। तो मैं, चूंकि मेरे पास 8-10 मिनट का टाइम है, तो मैं कंक्लूड करूंगा कि एज फार एज लीगल प्रोफेशन इज कंसर्न, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोफेशन, वेरी लुक्रेटिव प्रोफेशन, और कम से कम उन लोगों को जिनको ये लगता है कि समाज में हम सर उठा के रहें, या हमारी कम्युनिटी सर उठा के रहे, या बड़ी तादाद में लोगों का हम काम करें, उनको तो जरूर से इस प्रोफेशन में जाना चाहिए। मेरे बच्चे ही बहुत थोड़े से हैं, एक लड़का है तो उसको ला करा दिया, अब हो जाएगा। 2 बेटियां हैं, एक बेटी बाई चांस पिछले साल नीट में आ गई, MBBS में भी एक छोटी बेटी है, और उसका भी इरादा ये है, अगर उसका मूड हुआ तो छोटी बेटी चूंकि बहुत ज़हीन है, बहुत बोल्ड है, मैं उसको भी लॉ कराऊंगा। चैरिटी बिगिंस एट होम। मैंने अपनी बात बता दी, कभी आप कहेंगे शकील साहब अपने बच्चों को तो कुछ और करा रहे हैं, हम सबको कह रहे हैं कि अच्छा भैया तुम वकील बनो, ऐसा नहीं। तो मैं समझता हूँ कि हमारा ये जो प्रोफेशन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोफेशन है। और एक ज़माने में तो आप देखिए कि जितने टॉप के लोग हैं, आप कपिल सिब्बल को देख लीजिए, सलमान खुर्शीद साहब को देख लीजिए, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो हैं, ये बहुत अच्छे वकील हैं, बहुत अच्छे वकील हैं। और बच्चों एक बात याद रखो कि इतनी इसमें इनकम है, इतनी इनकम है कि कभी कभी एक अच्छी हियरिंग के लिए, एक हियरिंग के लिए बेटा, सुप्रीम कोर्ट के केसेस, एक हियरिंग के लिए 15 मिनट या आधे घंटे की हियरिंग के लिए 20, 30, 40 लाख रुपया लेते हैं, ओनली फॉर वन हियरिंग। और अगर जज ने हियरिंग नहीं की और केस चला गया, तब भी फीस देना है। और एक चीज और सुनिए आप लोग, कि जो कामयाब वकील है वो अपनी फीस तो लेते हैं। मान लीजिए उन्होंने किसी केस का 10 करोड़ रुपीस, 100 मिलियन तय किया, तो उसमें 30 मिलियन में टैक्स भी जोड़ देते हैं। कहते हैं 100 मिलियन तो मेरा ये हुआ, 30 मिलियन टैक्स हुआ, 130 मिलियन आपको दे दो। तो इस प्रोफेशन में आई एम गोइंग टू कंक्लूड कि दीन भी है और दुनिया भी है। इसमें जो है अगर आप आएंगे तो वो चीज तो आप करेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ जो है दुनियावी एतबार से भी बहुत ज्यादा ये, जैसे हिंदुस्तान में टॉप के वकला हैं, नरीमन साहब हैं, के वेणुगोपाल हैं, गोपाल सुब्रमण्यम हैं, पी चिदम्बरम हैं, हरीश सावले, सिंघवी, सी सुंदरम, सलमान खुर्शीद,
जी जी जी, क्या फरमा रहे हैं? Humble request if everyone can mute their microphone, please. जी जी, म्यूट कर दें तो बहुत अच्छा है। एक दो जगह से थोड़ी सी आवाज आ रही है, और यह है बेटा, है मिल गया। अब मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि सर सैयद रहमा पे अपनी बात हम खत्म कर रहे हैं। देखिए, आप में से अच्छी खासी तादाद में लोग अलीगेरियन हैं, और जो नहीं भी हैं वो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी के फादर ने पढ़ा था। सर सैयद ने हमेशा अपने बारे में कभी नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा। हमेशा इंडियंस के बारे में सोचा, हिंदूज और मुस्लिम्स के बारे में सोचा। आई गिव यू 3 or 4 एग्जाम्पल्स जिसमें सर सैयद ने लड़के काम कराया। एक सबसे बड़ा कारनामा बता के अपनी बात खत्म करूंगा, 2 छोटे छोटे। जब सर सैयद ने 1857 की बगावत हुई, बगावत कहिए, फ्रीडम स्ट्रगल कहिए, कुछ भी कहिए, म्यूटिनी कहिए, तो सर सैयद हैड एन ऑप्शन टू गो टू मक्का। उस जमाने में कुछ भी गड़बड़ कहीं होती थी तो लोग सीधे मक्का मदीना चले जाते थे, लाइफ बिता देते थे। अभी भी बहुत सारे लोग दुनिया के रूलर्स वगैरह हैं, जब कुछ मसला होता है तो वो जाकर रिफ्यूज ले लेते हैं। उन्होंने भी तय किया, सबने कहा कि आप जाइए, लेकिन सर सैयद ने कहा कि ठीक है, मैं चला तो जाऊंगा वहां पर, लेकिन मेरे पीछे हिंदुस्तान में क्या होगा। देन ही डिसाइडेड टू रिमेन इन इंडिया, स्टे बैक इन इंडिया। उन्होंने तय किया कि मैं हिंदुस्तान से नहीं जाऊंगा। और सबसे बड़ा काम सर सैयद की था कि ही रोट ए बुक, छोटी सी किताब है, आप पढ़ लीजिएगा, असबाब बगावत हिंद, काजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट। मैं कसम खा के कह रहा हूं, बावजूद इत्तेफाक से हूं, कि मुझे एक सेमिनार में ये टॉपिक मिल गया, तो मैंने जब इस किताब को शुरू किया और जब आखिर में गया, तो इस किताब को जब आप शुरू करेंगे तो परतें खुलनी होंगी, आप कन्विंस होते जाएंगे कि ये मुसलमानों और हिंदुओं की गलती नहीं थी, इंडियंस ने बगावत नहीं की थी, बल्कि अंग्रेजों की गलत पॉलिसियां थी जिसकी वजह से ये बगावत हुई। और सर सैयद ने इतने मुदल्लिल अंदाज में, इतने बढ़िया अंदाज में लिखा कि इसका जवाब नहीं। सर सैयद ने उस किताब को लिखा, उनके दोस्तों ने कहा कि सर सैयद, खुदा के लिए आप ये मत कीजिए, आपको कत्ल कर दिया जाएगा, आपको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। तो सर सैयद ने कहा कोई बात नहीं, मैं जो ये किताब लिखना है, क्योंकि ये ब्लेम जो इंडियंस पे है कि उन्होंने ऑर्गेनाइज बगावत की, उसको मुझे खत्म करना है। उसके बाद मेरे अजीज साथियों, माय लर्नेड फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स जो आप सुन रहे हैं, सर सैयद ने कि वो किताब लंदन भेजी सर सैयद ने, देखिए किस अंदाज से भेजी। सर सैयद ने 500 कापियां छपवाई उसकी आगरा में, जिसमें से 450 या 450 कापियां इंग्लैंड भेज दी। चंद कापियां, 2, 4, 5 कापियां अपने पास रखी। अब जब इंग्लैंड में किताब गई और पार्लियामेंट में पेश हुई तो हंगामा मच गया। कहने लगे किसी इंडियन की ये हिम्मत कि हमसे ये कहे कि हमारी गलती है, जिल्ले इलाही से वो ये कहे कि जिल्ले इलाही ने गलत काम किया है। मुतालबा हुआ कि सर सैयद को फौरन फांसी दी जाए, सर कलम कर दिया जाए। बट माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर पार्टिसिपेंट्स, देयर वर सेनर एलिमेंट्स आल्सो। सेनर न होते तो पूरी दुनिया पे हुकूमत न करते। सेनर एलिमेंट्स ने कहा कि हमको इस किताब को स्टडी करना चाहिए, हमको इस किताब को पढ़ना चाहिए कि आखिर क्या है। जब उन्होंने किताब को पढ़ा तो उनको अपनी गलती का अंदाजा हुआ। फिर भी उनमें से कुछ शर्री लोग थे, उन्होंने कहा कि सर सैयद से कहा तो किताब कितनी बांटी, उन्होंने कितनी किताब डिस्ट्रीब्यूट की, विद इन ब्रैकेट बगावत कराने के लिए। तो सर सैयद ने कहा कि जितनी किताबें थी उसकी चंद कापियां मेरे पास हैं, बाकी एक भी कापी अगर किसी हिंदुस्तानी के पास या किसी और के पास मिल जाए तो उस जमाने में सर सैयद ने कहा था कि 1000 रुपया फी कापी मैं दूंगा। उस जमाने का 1000 रुपया कम से कम आज का 1 लाख के बराबर। कितना इखलास था। और उसके बाद अंग्रेजों को बात समझ में आई तो उन्होंने काउंसिल में पहली बार 3 मेंबर इंडियन शामिल किए गए, जिसमें 2 गैर मुस्लिम थे, 1 मुसलमान थे।
पहली बार वहां से स्टार्टिंग पॉइंट सर सैयद की देन है। उन पे ये इल्जाम लगाना कि किसी पर्टिकुलर कंपनी को चाहते थे, नहीं, वो सबको लिए काम किया उन्होंने। ये एक अलग बात है कि अगर कोई कम्युनिटी कमजोर है, सबसे ज्यादा मुश्किल का शिकार है, सबसे ज्यादा जुल्म हुआ है, तो ऑटोमेटिक उसके लिए काम किया जाएगा। अभी गवर्नमेंट ने खाना बांटा तो हमारे घर थोड़ी बांटा शकील समदानी को, आपके घर थोड़ी बांटा, वो गरीबों के बांटा, इसकी जरूरत थी। आप ये थोड़ी कह सकते कि साफ फला को बांट रहे, जो मुस्तहिक था। तो उस वक्त चूंकि 1857 में सबसे ज्यादा जुल्म का शिकार मुसलमान हुए थे, तो उन्होंने जितने आर्टिकल्स लिखे, जितनी किताबें लिखी, उसमें ज्यादातर उसके ऊपर थी। लेकिन ही वाज ए सेकुलर मैन। उसका भी एक एग्जाम्पल दे दूं मैं आपको। सर जब बगावत हुई तो सर सैयद बिजनौर में पोस्टेड थे। बिजनौर में सर सैयद ने देखा कि बहुत से अंग्रेज बच्चे और औरतें भाग के उनके दरवाजे पे आ गए। सर सैयद ने पनाह दे दी, पीछे पीछे बागी आ रहे थे कत्ल करने के लिए। सर सैयद ने उन औरतों बच्चों को, अंग्रेज जो थी, उनको अपने पनाह दे दी। भाई इसके बाद मैं रोक दूंगा, सर पनाह दे दी। पीछे पीछे बागी आए तलवार लिए हुए, कहा कि हमें कत्ल करना है अंग्रेजों को, क्योंकि ये हमको कत्ल कर रहे हैं। सर सैयद ने कहा नहीं। सर सैयद के पास बाई चांस कोई बॉडीगार्ड नहीं था, कोई पुलिस नहीं थी, कोई फोर्स नहीं थी, ऑफिसर थे, इत्तेफाक से नहीं थी। सर सैयद बजाते खुद तलवार लेके वहां खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि अगर किसी को अंग्रेज बच्चों को, औरतों को मारना है तो पहले सर सैयद से मुकाबला करना होगा। बहरहाल बागियों ने बड़ा लिहाज किया सर सैयद को। ही वाज अ गुड रेपुटेशन, ही हैड अ वेरी गुड रेपुटेशन, बहुत अच्छी रेपुटेशन थी, और चले गए। उसके बाद उन बच्चों की जान बच गई, बगावत खत्म हुई, उन औरतों बच्चों को आजाद कराया गया, वो गए। तो ब्रिटिश के, आप सोचिए कि बादशाह की फैमिली के लोगों को बचा ले, या उसके क्लैन को बचा ले, या उसकी बिरादरी को बचा ले, या उसकी सिबलिंग को, तो कितनी बड़ी बात है। अंग्रेजों ने सर सैयद के क्या और वाकया सुन लीजिए। सर सैयद को एक जागीर, बहुत बड़ी जागीर अता की, अलॉट की, जिसका रेवेन्यू 1 लाख रुपीस पर ईयर था। 1 लाख रुपीस इक्वल टू 1 करोड़ रुपए आज के हिसाब से, 10 मिलियन। लेकिन सर सैयद ने रिफ्यूज कर दिया। अब आप कहेंगे अरे इतनी बड़ी गलती क्यों की, वो तो इनाम में दे रहे थे। सर सैयद ने वो रिफ्यूज करके, जानते हैं मेरे अजीज साथियों क्या लिया? उन्होंने अंग्रेजों का कॉन्फिडेंस जीता, एतमाद जीता, और उसी एतमाद का इस्तेमाल करके सर सैयद ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना दी, एमए कॉलेज। ये उस एतमाद की है। तो मेरे अजीज साथियों, एतमाद हासिल करना चाहिए दूसरों। एतमाद अगर आपने हासिल कर लिया, उस एतमाद की, इसी जुमले को मैं अगर कभी अल्लाह ने मौका दिया ऑडिटोरियम में बात करूंगा, तो फिर आप देखिएगा। कभी आपके यहाँ बात किया, अल्लाह का शुक्र है कि वेबिनार में हो रहा है, तब आप देखिएगा कैसी कैसी बात बताऊंगा। अनछुए, जो सुने नहीं, उस एतमाद की वजह से, मैं ऑथेंटिक बात कर रहा हूं, एतमाद वर्ष, उसी ट्रस्ट की वजह से सर सैयद ने इतना काम किया। एमएओ कॉलेज बनाया, पहले मदरसतुल उलूम मुसलमाना ने हिंद बनाया 1875, फिर एमएओ कॉलेज जो है 1877 में बना। उनका प्लान था यूनिवर्सिटी बनाने का, लेकिन नहीं बना। लेकिन सर सैयद ने एक चीज और की, 1883 में लॉ कॉलेज एमयू का बना है। उस जमाने में जब सिर्फ शायद 7 लॉ कॉलेज इंडिया में थे, ओनली 7 और 13, आई मे बी रॉन्ग, थोड़ा सा फर्क हो सकता है। 7 कॉलेज मुझे याद है कि पूरे इंडिया में थे। उसमें सर सैयद जैसे ज़हीन आदमी ने, दूरंदेश आदमी ने लॉ कॉलेज बनाया 1883 में। हमारा लॉ कॉलेज 1960 में फैकल्टी हो गया। इतने ज़हीन थे। हमारे लॉ कॉलेज को 137 साल हो गए। जब सर सैयद की जहानत ये थी, तो सोचिए कि लॉ कितना इंपॉर्टेंट रहा। उन्हें अपने बच्चे को भी कराया लॉ, लंदन से पढ़ के आए। एक बात और बता दूं आपको, सर सैयद की एक और थी, यानी सेकुलर भी थे वो। बिजनौर में क्या हुआ, जब सेकुलरिज्म की बात करता था, बिजनौर में क्या हुआ कि जब बागी हट गए, बागियों से छीन लिया गया, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे, मैं देख नहीं पा रहा, बागियों को से छीन लिया गया, तो अंग्रेजों ने हिंदू चौधरियों से पूछा, हिंदू खासतौर से कह रहा हूं, कि आप ये बताइए कि बिजनौर जिले का चार्ज किसको दिया जाए। एक वेबिनार हो रहा है अलीगढ़ से, अभी वेबिनार हो रहा है, किसको दिया जाए ऑनलाइन सेमिनार होता है, ठीक है। डी है ये लॉ कॉलेज के लिए, किस रिस्पांसिबिलिटी। हिंदू चौधरियों ने ये कहा
पूरे दुनिया अगर में आप हमारी बात मानते 20% हैं, लोगों को तो मैंने भी इन्फॉर्म किया। उन्होंने कहा कि अगर लॉ आप की इम्पोर्टेंस बता रहे ने कहा कि अगर आप हमारी ख्वाहिश चाहते हैं तो बिजनौर का चार्ज सैयद अहमद को दिया जाए। हिंदू चौधरियों ने कहा, कहां से सर सैयद कमनल हो गए, कहां से मुस्लिम परस खाम खा की बात है। हिंदू चौधरी कह रहा है कि अगर हमारी बात माने तो सर सैयद अहमद खान को दिया जाए। इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। कभी सर सैयद पे वेबिनार ही हुआ तो इंशाअल्लाह फुल लेंथ हम स्पीच देंगे। मैं आप सभी हजरात का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने वेबिनार का इंतजाम किया, बहुत अच्छी तरह से सुना। और मैं बस एक चलिए बाद में एक शेर सुना दूंगा आपको। अब मैं क्वेश्चन आंसर जिसको करना हो, कुछ सवालात भी आप पूछ सकते हैं, मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। क्वेश्चन आंसर सेशन में भी स्टार्टेड। Thank you very much, sir. But if you can conclude with the share which you were thinking of, it would be great. हम क्वेश्चन आंसर के बाद कंक्लूड करेंगे। अच्छा चलिए ठीक है। So thank you for your wonderful and very informative lecture. I don't think you have left any aspect of legal education, and in this 1.5 hours you have covered almost everything. And many of us are not from legal background, including me, but still we found it very interesting, and we remain glued to our seats listening to all the aspects of different aspects of law, and especially the incidents you highlighted from the life of Sir Syed Ahmad Khan, which many of us have never heard of before. And also like, quoting verses from the Holy Quran which relate to justice and things, other related things. So it is really, really excellent. And I am sure many of your students are here, and you are a source of inspiration for all of them, as I can understand from the messages they are posting over here. And some of them have a few questions. I would like to ask those questions on their behalf. Yeah. So the first question is from Dr. Mukti Sharma. Her question is related to the present political situation in the country, and she asked that how can lawyers change the present political situation in the country for better? Are there any lawyers who can bring about the change as done by Sir Syed Ahmad Khan? मुक्ति शर्मा बताना चाह रही हैं, लेकिन मैं फंसूंगा नहीं, इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा इनका। Okay, so we move on to the next question, simple question by Mr. Saud Al Hassan. हम जवाब देंगे। नहीं हम जवाब देंगे। मुक्ति शर्मा साहबा, ऐसा है कि ये जैसे अंबेडकर साहब कहते थे कि साहब सारी चीजों की चाबी जो है पॉलिटिक्स है, तो मैं कहता हूं कि सारे मसले का हल जो है लॉ है, लीगल प्रोफेशन है। These lawyers can do a lot for the country. एक PIL फाइल हो और क्रिमिनल्स के ऊपर पाबंदी लग जाए सुप्रीम कोर्ट से, 1% will file a PIL, और एक जज भी वकील ही होगा, एडवोकेट होगा। एक फैसला अगर हो जाएगा उसका जिस दिन, तो कम से कम जो 35 to 40% क्रिमिनल्स हैं बिलोंगिंग टू एवरी पार्टी, वो क्रिमिनल्स खत्म हो जाएंगे। तो 40% सुधार तो क्रिमिनल्स हो जाएगा। वकील चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, वकील एक फैसला बहुत होगा। लायर भी जो होगा, जो प्लीड करेगा वो भी एडवोकेट होगा, और जो जज की कुर्सी पे बैठा है वो भी एडवोकेट होगा। लेकिन मुफ्ती शर्मा साहब एक बात सुन लीजिए, बात लायर की नहीं है, बात इंडिविजुअल की, शकील समदानी की है, जैदी साहब की बात है, दानिश साहब की है, हमारे दिलशाद साहब की। बात यह है कि जो इंडिविजुअल यूनिट है, ये अगर ऑनेस्ट नहीं होगा तो लॉ कितने आप बना लें। वी नो हाउ टू सर्कमवेंट लॉ। मैं चाहे वो बड़े देखने में बहुत बड़े मुत्तकी परहेजगार हो, चाहे जटायु हो, चाहे बहुत बड़े लेफ्टिस्ट हो, चाहे बहुत बड़े कम्युनिस्ट हो, लेकिन जब जाती मामला आता है तो सारे रूल धरे रह जाते हैं। तो मोहतरमा मुफ्ती साहबा वकील तो करेगा ही, लेकिन बात यह है कि हम चाहे जिस पोस्ट पर हो, हम भी ये कहें कि हम जस्टिस करेंगे। लेकिन हाँ, वकील अगर ये हमारा वकील है, ये लायर है, दे कैन डू ए लॉट। एंड इफ दीज लायर्स, सम ऑफ दीज लायर्स ट्राई देयर बेस्ट टू रिमूव द करप्शन
criminalization of the politics, they can do it. उनको power होता है. Thank you for a very good question. सियासत की गंदगी दूर हो सकती है अगर लायर्स कुछ आगे सामने आ जाए. अगर कुछ कॉमन क्वेश्चन है साथ ले लीजिएगा. Okay. So there is one general question. Is it good to do LLB after graduation? This question has been asked by Saud Al Hassan. Is it good to do LLB? Actually, for LLB nowadays, 5 years course करना चाहिए. BA LLB honors. This is integrated course. After graduation, you can go for 3 years course. But nowadays, for the last 25 years, BA LLB is the best. Integrated course, क्योंकि BA आप अलग से करेंगे और LLB तो वो बात नहीं बनेगी क्योंकि the entire focus is now on the BA LLB 5 years course. अगर आप BA करके आएंगे तो 1 साल का लॉस भी है. 3 years ग्रेजुएशन प्लस 3 years वो. तो फोकस जो है अगर आपको लॉ करना है तो डिसाइड एट द एज ऑफ 12th स्टैंडर्ड पे डिसाइड कर ले आप. वहां से इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जिसमें 4 years हम लॉ पढ़ाते हैं और 1 year सोशल साइंस पढ़ाते हैं. पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी, ये 4 सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं उसको. तो इसलिए अगर आप जानना चाहें तो वैसे अगर आपकी ख्वाहिश है बच्चे की तो 3 years मिलेगा, लेकिन क्वालिटी की जहां तक बात है, यू विल फाइंड क्वालिटी in 5 years integrated BA LLB course. Thank you, sir. There is a question by Ms. Nazia Akhtar, and she asked that legal profession has not been given its due share of respect in India. So how can we revive its acceptance in our society? अभी तो नाजिया साहबा, ये मैं आज दिन भर टेंशन में रहा हूँ. पहला लेक्चर है इसीलिए कि बहुत आप लोग बहुत पढ़े लिखे लोग और बहुत लोग सुन रहे होंगे तो बहुत अच्छा, इसीलिए तो कोशिश कर रहा हूँ मैं. 20 टॉपिक थे मैं बोल सकता था. क्वेश्चन क्या था आपका? अगेन रिपीट करिए. In the legal profession has not been given its due share of respect. Yes, you are right, Nazia. You are right. But since 1995, the government is paying very much attention on legal profession. Many top law colleges are established in Mumbai, Hyderabad, Bangalore, Delhi. बड़े बड़े बिलियनर्स ने they have established law colleges. बहुत शानदार क्वालिटी के, लेकिन जाहिर है कि ये शानदार कॉलेज की फीस बहुत है, लेकिन बहुत हाई फाई बहुत अच्छे हैं. और हमारे बच्चे इस वक्त बाहर बहुत जा रहे हैं. मेरे पढ़ाए हुए 5 बच्चे जो हैं लॉ के, ये कोविड ना होता तो कम से कम 5 बच्चे यूके चले जाएंगे. ये चले गए समझ लीजिए कि नहीं जाएंगे एक अलग बात है. तो बाहर जा रहे. इंडिया में आप फोकस शुरू हुआ है. देखिए बात क्या है, फोकस इसलिए कि लॉ वाले ही तो परेशान करते हैं पॉलिटिशियंस को. लॉ वाले ही तो नकेल डालते हैं पुलिस पे. जिससे नकेल पड़नी है उस पर क्यों ध्यान दिया जाएगा. लेकिन अगेन आई एडमायर प्रोफेसर माधव मेनन. He gave a concept of 5 years BLB course. उसकी वजह से अब गवर्नमेंट की फोकस है और सुप्रीम कोर्ट भी बहुत कंसर्न है, हाई कोर्ट्स की जजेस की तादाद बढ़ाई जाए. हमारे अभी 610 लड़कों का सिलेक्शन हुआ है अभी यूपी में, 602. हमारे चचा जान 1975 में अली अहमद समदानी साहब जज बने थे तो कई बरस में वैकेंसी आती थी, कभी 7 वैकेंसी कभी 8. इस वक्त 610 आई है और अब भी बहुत कमी है जजेस की. तो जो भी इस वक्त प्रोफेशन में जाएगा उसको बहुत अपॉर्चुनिटी है जज बनने की. अगर आप अच्छी हो, आपका शौक हो तो आप जाइए. मैं समझता हूं कि अगर जरा सा भी सीरियस होकर आप पढ़ेंगी तो लॉ करने के बाद 2 साल के अंदर अंदर आप जज बन जाएंगी. नहीं तो कारपोरेट सेक्टर खुला हुआ है, टैक्सेशन सेक्टर खुला हुआ है, मीडिएशन सेक्टर खुला हुआ है, बहुत सारा खुला हुआ है. अब गवर्नमेंट ने ध्यान देना शुरू किया है. आपकी बात सही है कि पहले ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन चूंकि प्राइवेट सेक्टर भी इंटर हो गया है तो गवर्नमेंट भी कर रही है. आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा. Okay, sir. Now we have a next question which actually points towards the judicial system. It says that justice delayed is justice denied, and normally when we file a case in the court and we get dates after dates and the
justice is denied or delayed rather. So how can we improve this situation? You are right. Justice delayed is justice denied. That's why I have just told you that our Supreme Court is trying its best to increase the number of judges. Yeah. And there is one more thing. Now there is a concept of ADR, alternate dispute redressal, which is gaining strength day by day throughout the world. ADR में क्या होता है कि ये नॉर्मल प्रोसीजर आप फॉलो नहीं करते। कोशिश की जाती है ADR में बहुत कम टाइम में मामला, खासतौर से टैक्सेशन के मामला आते हैं, कारपोरेट सेक्टर है, ADR में जाते हैं लोग कि आपस में बातचीत से, नेगोशिएशन से, मीडिएशन से मामला हल हो जाए। लेकिन आपकी ये बात सही है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, उसकी मजबूरी है। ये रिकॉर्डिंग लाइव ऑन फेसबुक आ रहा है, हमें दोबारा सुनना है। आज से 8-10 साल सुन सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोसीजर लाइव पे जाए, वहां पर कैसे पहुंचेंगे हम? इन रिकॉर्डिंग हो रही है लाइव। I request the participants to please mute their mics. एक जगह हो रही कोई बातचीत हो रही है तो म्यूट, हमारा म्यूट है क्या है? Please mute your mic because we can listen to your conversation. ठीक है, हमारी आवाज आ रही है? ये कह रहा था कि ये तो बिल्कुल सही है, और उसकी वजह क्या है? 8-10 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो प्रोसीजर है वकीलों का, अदालत का प्रोसीजर है, उसमें अमेंडमेंट किया। मुझे अच्छी तरह याद है कि शायद 3 महीने तक कंटिन्यू स्ट्राइक रही कि अगर ये अमेंडमेंट्स आप कर देंगे तो हमारी कमाई पे असर पड़ेगा, क्योंकि एडजमेंट्स बार बार वो लेते हैं। एक बार वकील कहता है बीमार हम हो गए, एक बार दूसरा वकील कहता है, फिर वो अपनी बीवी को बीमार करता है, फिर ये अपनी बीवी को बीमार करता है, फिर वो अपने बच्चों को बीमार करता है, फिर ये अपने बच्चों को बीमार करता है, फिर मुवक्किल खुद बीमार हो जाता है, उधर का मुवक्किल बीमार होता है, इस मुवक्किल की भी बीमार होती है। इस तरह से एडजमेंट होता रहता है। तो गवर्नमेंट ने इस एडजमेंट को खत्म किया। मुझे अच्छी तरह याद है कि 3 महीने या 6 महीने तक पूरी स्ट्राइक रही कि आप विड्रॉ करिए वरना हमारी रोजी रोटी पे फर्क है। अब ये बताइए, मैंने अभी वो जो शर्मा साहिबा थी उनको मैंने कहा था कि इंडिविजुअल सही होना। जब समाज में हर तबका सेल्फिश हो गया है, कैसे होगा आप ये बताइए? चाहे वो वकील की शक्ल में हो, चाहे डॉक्टर की शक्ल में हो, चाहे किसी और शक्ल में हो। लेकिन उसकी एक वजह यह है कि हमारे यहाँ जो अदालतों पे पैसा खर्च होना चाहिए जुडिशल सिस्टम पे, उसके उतना फंड नहीं है। फंड अगर हो, अदालत जैसे फास्ट ट्रैक अदालतें बन गई हैं, उससे क्रिमिनल जस्टिस में जरा जल्दी होने लगी। लेकिन अपील का प्रोविजन है, अपील का प्रोविजन है, केसेस इतने ज्यादा हैं। आपको मालूम है, आई गिव यू वन फैक्ट, देयर आर 3 करोड़ 50 लाख केसेस इन इंडिया। 3 करोड़ 3.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है इंडिया की अदालत में। अगर उनको तय करने में 130 साल लगेगा। 130 years are required for deciding 3.35 million cases in India. तो इसके लिए पॉलिटिकल सिस्टम भी जिम्मेदार है, इकोनॉमी भी जिम्मेदार है। अब जाहिर है कि इतने जजेस की भर्ती, इतना वो सारा चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, जो एक बात मैंने पहले कही थी कि अगर किसी सूरत से करप्शन पे पकड़ हो जाए तो जो पैसा इधर उधर जाता है वो जुडिशियल सिस्टम में जाएगा और उससे फर्क पड़ेगा। और आपकी बात बिल्कुल सही है, ये कहा गया कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जाहिर है कि 20 साल के बाद इसके ऊपर एक पाकिस्तान का लतीफ़ा याद आ गया। जैदी साहब सुन लीजिए आप, कि वो पता नहीं किसका है कि साहब वो बीवी ने पूछा कि इतनी देर में तुम क्यों आए। वकील साहब घर पहुंचे, बीवी ने कहा कहाँ थे? उन्होंने कहा कि मैं बेगम जब मैं अदालत से निकला तो कब्रिस्तान चला गया। कब्रिस्तान क्यों गए थे? मैं मुवक्किल को ये बताने गया उसकी खबर पे कि तुम मुकदमा जीत गए हो। जब मैं वहां गया तो देखा कि एक औरत जो है कब्र के ऊपर हवा चल रही है, पंखा चल रही है। तो मैंने सोचा कि कितनी वफादार औरत है। पूछा कि तुम यहाँ क्यों हो? तो उसने कहा ये मेरे शोहर की कब्र है। उनका तुम इन पे पंखा क्यों झल रही हो? उनका कहा था उन्होंने कि जब तक मेरी कब्र की मिट्टी खुश न हो जाए तुम दूसरी शादी मत करना। मैं मिट्टी खुश कर रही हूँ। तो दोनों चीजें आ गई। Yes. Very interesting, sir. तो बिल्कुल सही बात है कि
तो थोड़ा सा याद आ गया इत्तेफाक से भाई साहब। जी। टाइम होने वाला है। Yeah, so I'll take a couple of more questions, some from the point. मैं थका हुआ हूँ लेकिन बहुत खुश हूँ। आप मुझसे पूछ, मेरे पास पूरा टाइम है, आपका टाइम कम हो तो कर दीजिए। Thank you very much, sir. टीचर और नेता को बोलने का मौका मिल जाए, थकावट दूर हो जाती है। नहीं, टीचर बहुत से ऐसे हैं जो बिल्कुल क्लास में नहीं बोल पाते, बाहर बहुत बोलते हैं। कौन है ये? बाहर बहुत बोलते हैं। मैं डॉक्टर एम.एस. राजपुरोहित। अच्छा, okay. Okay, sir. We come back to the question. There is a question from one student: can a law graduate from India practice in Gulf countries? This is a very relevant question, I believe. उसमें तो graduate from India practice in Gulf countries. देखिए, इसमें जहां तक जनरल बात है, आमतौर पर जिस कंट्री में जाते हैं वहां कुछ न कुछ एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, लेकिन मुझे गल्फ का सही से नहीं मालूम। लेकिन और कंट्रीज में जहां आप जाते हैं वहां पर आपको वहां का एग्जाम पास करना होता है। और इसमें एक एक्सेप्शन है, एडीआर का जो जिक्र मैंने किया था, एडीआर दुनिया के 165 इन 165 कंट्रीज एडीआर बिना उस प्रोसीजर के भी किया जा सकता है, डायरेक्ट वहां किया सकता है। मिडिल ईस्ट का प्रोसीजर मुझे नहीं मालूम है, लेकिन यकीनन कोई ना कोई चीज को एग्जाम पास करना होगा। आई एम सॉरी, आई डोंट नो। Okay, sir. Thank you very much, sir. There is one more question related to practicing law as a profession outside India. The question is: after completing my graduation in BA LLB, what are the ways to go to foreign for practicing as a lawyer, or how can one be a barrister? आप कहाँ से लॉ किया आपने? This I don't know, sir. It's a question from Mr. Owais Zia. I don't know. ज़िया साहब, अगर आप सुन रहे हैं तो बताइए कहाँ के आप हैं, कहाँ से लॉ किया है? Must be from India, I guess. अच्छा, इंडिया से। देखिए सर, बाहर जाने का तो सर फ्रॉम लखनऊ इंटीग्रल यूनिवर्सिटी। अच्छा, इंटीग्रल। देखिए बेटा, ऐसा है आजकल फाइनल ईयर सर। ठीक, आजकल ये सारी चीजें जो हैं, अभी आप नेट पे देखिए, हर जगह का प्रोसीजर है। अभी हमारे बेटे ने इंग्लैंड में अप्लाई किया था, आप नेट पे देखिए, सारा प्रोसीजर मौजूद है। लेकिन वहां पर प्रैक्टिस करने के लिए वहां से लॉ की डिग्री आपको करनी पड़ेगी। हमारी एक स्टूडेंट है सुमी, इंग्लैंड में सुमी है, बांग्लादेश की है वो, हमको बहुत कहती थी, पिछले साल गए थे भाई, एक महीने ईद वहीं किया था। सुमी ने पूरा, उसको बहुत शौक था कि मैं लंदन में, इंग्लैंड में करूंगी, तो यहाँ की डिग्री उसके काम नहीं आई, उसने पूरा लंदन का लॉ किया। वहां से लॉ करना जरूरी है, उसके बाद प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। मैं बोलूं क्या? लेकिन शकील साहब, यहाँ पर जो इंडिया से लॉ करते हैं काफी लड़के हैं, इंटरनेशनल कॉर्पोरेट में ज्वाइन कर सकते हैं, गवर्नमेंट में तो नहीं। इंटरनेशनल कॉर्पोरेट इज ओपन फॉर ऑल। हाँ जी। मैं भी अलीगढ़ से लॉ ग्रेजुएट हूँ, 70 पास आउट हूँ। मैं यहाँ पर इंश्योरेंस में काम करता हूँ। हाथ भाई को सब जानते हैं, सीनियर मोस्ट अलीगरियन है, one of the senior most Aligarh, former president of Aligarh Muslim University Association. Yes sir. हाथ भाई अब बोलिए। 70 पास आउट हूँ, सऊदी अरब में पिछले 40 साल से हूँ। जी। मैं इंश्योरेंस सेक्टर में काम करता हूँ, लेकिन मैंने जो पढ़ा है लॉ में, उसका कोई इस्तेमाल यहाँ पे नहीं है। जी बिल्कुल इसमें अगर अलग लॉ है, लैंग्वेज अलग है, इसलिए कोई प्रैक्टिसिंग लॉयर अगर कोई लॉ ग्रेजुएट है, इंडियन लॉ ग्रेजुएट है, तो यहाँ उसका कोई वो इस्तेमाल नहीं है लोकल लॉज के हिसाब से। हाँ, कंपनीज लॉ हैं या इंश्योरेंस में या और दूसरे सेक्टर में आप काम कर सकते हैं, लेकिन वो लॉज यहाँ पर उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो उसकी वजह है ना, जैसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है शरिया बेस्ड है, अरबिक नोइंग लोग हैं। उसके अलावा सिविल लॉ में भी उसी तरह का है, टैक्सेशन हुआ या जैसे आपने कहा इंश्योरेंस हुआ, मीडिएशन वगैरह में वहाँ काम आ सकता है। अदरवाइज तो वो सिस्टम ही बिल्कुल अलग है, तो वहाँ पर उन्हीं चीज़ों में जाना चाहिए। देखिए, आप लॉ तो कर लीजिए, लेकिन उसके बाद कोई एक डिप्लोमा या कोई छोटा सा कोर्स करिए आप, जो वहाँ के लिए रेलेवेंट हो। वहाँ वो थोड़ा सा तो करना पड़ेगा। मान लीजिए 1 साल का कोर्स है, 6 महीने का कोर्स है, तो वहाँ से भाई देखिए, एक बिल्कुल उनका लॉ अलग है, हमारे यहाँ से सारा सिस्टम अलग है, तो मिनिमम कोई रिक्वायरमेंट वहाँ का होगा, वो तो आप करेंगे। अब जैसे अरबिक आप नहीं जानते, तो जाहिर कोर्ट में अरबिक चल रही है। लेकिन अभी जो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है इसी वजह से
कि वहाँ पर इंग्लिश नोइंग की भी जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, बिजनेस सेक्टर है, टैक्सेशन सेक्टर है, वहाँ पर इन लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो बाहर की कंपनियां हैं, फॉरेन कंपनीज हैं, वो ऐसे बच्चों को एम्प्लॉय कर रही हैं आजकल, अच्छा खासा एम्प्लॉय हो रहा है। Can I go ahead? Yes, Salman bhai, you can ask. Yes. Salman sir is a senior person in IFE. जी। Yes, Salman bhai, go ahead. जी सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तारीफ का सिलसिला तो बहुत लंबा है, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन करूंगा आपसे। क्योंकि यहाँ पर अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ था, अभी एक केस हमने डील किया था, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ बंदे का, इंडिया जाके केस कर दिया। अच्छा। तो उसको यहाँ पर तो कुछ पैसा नहीं मिलता, लेकिन इंडिया केस करने के बाद उसको ही गॉट अ लॉट ऑफ मनी। तो मैं जानना चाहता हूँ ऐसा पॉसिबल है? क्या चीज रिपीट करिए? डिस्टर्ब हो रहा है कहीं से, फैसल साहब जरा आस्क देम टू क्लोज। कहीं से शोर। Please, I request everyone to keep their mics muted. Please, the conversations can be heard. Please. जी बताइए सब। Yes, sir. म्यूट कर दीजिए, सबको म्यूट कर दीजिए आप। The problem is that Samdani sir also will be muted if I do that. नहीं ऐसा नहीं होगा, उनको अनम्यूट करके बाकी सबको म्यूट कर दीजिए आप। Okay, just a minute. I am muting everyone. Okay, खामोश हो गए, बोलिए। Okay, go ahead, sir. सब ऐसा है, यहाँ पर एक्सीडेंट केसेस होते हैं जी, तो उसका एक इंश्योरेंस क्लेम होता है। हाँ जी। उसमें कभी ऐसा होता है कि जो डिसीजन आता है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं होता है। जी। तो एक बंदे ने इंडिया जाके बॉम्बे कोर्ट में केस किया यहाँ के खिलाफ। हाँ। और वो जीत गया, उसको बहुत पैसा मिला। ऐसा पॉसिबल है? क्लियर हो ना? फिर आवाज बीच में कट गई थी थोड़ा सा। सलमान, फिर एक बार रिपीट कर दें सलमान भाई क्वेश्चन। अच्छा सॉरी, ऐसा है यहाँ पर कोई केस हुआ, उसको हम इंडिया में जाके अगर हम केस फाइल करें तो ये पॉसिबिलिटी है या नहीं? नहीं, कभी कभी होता है, ये पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। अगर इंडियन सिटीजन है तो फाइल कर सकता है इफ ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन, और वो कोई ऐसी कंपनी है जो इंडिया में भी काम कर रही है, उसका बिजनेस यहाँ पर है, तो फाइल कर सकता है। क्योंकि हमारे अंडर में एक लड़के ने पीएचडी किया है इसी के ऊपर, एडीआर के ऊपर उसने पीएचडी किया। तो हमारे पास एक केस आया कि साहब वो सीरिया का या कहाँ का था कि साहब वहाँ पर कोई क्लेम, जॉर्डन का एक क्लेम था, उसका पैर कट गया था, तो गवर्नमेंट उसको मतलब वो कंपनी वहाँ नहीं रही थी। तो उसने हमसे कहा कि साहब वो चूँकि कंपनी यहाँ काम करती है, वो मल्टीनेशनल है, उसका बिजनेस है, तो वो उसने हमसे दरख्वास्त की कि साहब आप हमारा केस इंडिया में फाइल करा दें। तो मैंने एक हमारा स्टूडेंट था, बहुत अच्छा वकील है, शारिक अहमद अब्बासी नाम है, तो मैंने उसको रिफ़र किया, यहाँ फाइल किया उसने। अगर वो मल्टीनेशनल है और यहाँ काम उसका बिजनेस है तो ही कैन फाइल द कंपेंसेशन केसेस में तो होता है बहुत सारा। नहीं सर, इनका सवाल ये था सलमान साहब का कि यहाँ के किसी जजमेंट को इंडिया के अंदर चैलेंज कर सकता है क्या यहाँ का एप्लीकेंट? अगर देखिए ज्यूरिसडिक्शन की प्रॉब्लम, देखिए ज्यूरिसडिक्शन तो वहाँ के कोर्ट का वहीं तक है, लेकिन अगर इंटरनेशनल कोई चीज आती है, देखिए नॉर्मल प्रोसीजर में तो बिल्कुल नहीं चैलेंज कर सकता। नॉर्मल में कैसे करते हैं? इंडिया का केस इंडिया में चैलेंज होगा, पाकिस्तान का केस पाकिस्तान में चैलेंज होगा, ज्यूरिसडिक्शन वहीं तक है। लेकिन अगर कोई इंटरनेशनल मामला है या इस तरह का मामला है, मल्टीनेशनल का है, तो वहां पर वो कर सकता है। उस हिसाब से वो मल्टीनेशनल थोड़ा सा इंटरनेशनल लॉ, जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है या बिजनेस लॉ है इंटरनेशनल लेवल पे, उससे गवर्न हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में उस मुल्क का जजमेंट वहीं पे नाफिज हो सकता है, दूसरी जगह एक्सेप्शनल केसेस में हो सकता है, नॉर्मल केस में नहीं। सर मैं काजी मोहम्मद उस्मान बोल रहा हूं। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ सर, मैं इसमें एक चीज ऐड कर दूं सर, अगर आपकी इजाजत हो तो। नहीं, आप बिल्कुल ऐड मत कीजिए, नहीं, नो नीड टू ऐड, इसलिए कि बात कहीं से कहीं जा रही है। आप ऐड मत कीजिए, आपने हमको बाद में बता दीजिएगा, उसकी वजह की बात दूसरी तरफ चली जाएगी, कहाँ की बात कहाँ निकल जाएगी। प्लीज आप ऐड। Okay, so we will stop here. I guess we have taken enough questions, and also we are running short of time because 6:45 is the time for Maghrib prayers. Hello. So Hello. Yes.
Assalamu alaikum, sir. Sir, my name is Roman Khan. I am from Faculty of Law, Aligarh Muslim University. अच्छा Yes, sir. Sir, I am in third year right now, and I have a question, sir. Okay, go ahead and be specific in your question. Go ahead. Yes, sir. Sir, we are having reciprocating territorial laws in our country. So, up to which level that laws can be applicable to our country? इसका कितना ये देखिए ऐसा है, ये बहुत बड़ी चीजें इसमें आने वाली है। ये सवाल आप हमसे पूछ लीजिएगा, बोलूंगा तो हाथ क्रिमिनल सिस्टम। इसे आवाज बहुत डिस्टरबेंस है, समझ में नहीं आ रहा। फैसल साहब कुछ करें, वो आने का चक्कर है, फिनिश करें। टेक्निकल को शकील साहब भी म्यूट हो गए उसमें। जी उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। Just a minute, sir. Just a minute. Yes, sir. जी, हमने उनसे कहा कि आप ये सवाल टेक्निकल क्वेश्चन है, क्रिमिनल लॉ का है, उसके समझाने के लिए हाफ एन आवर चाहिए। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल हो तो करें, अदरवाइज आप अलीगढ़ में थर्ड ईयर में हमसे पूछ लीजिएगा आके। वो टेक्निकल क्वेश्चन बाकी लोगों के लिए नहीं है, बाकी आम लोग हैं इसमें। Okay, sir. At this note, I think I would like to conclude, and thank you to Dr. Professor Shakil Samdani Sahab for such a interactive and very informative session. And I guess everyone has benefited from his point of view and what he has shared with us today. And we are very thankful to him for sparing time from his busy schedule and attending or delivering a lecture here in this webinar. Thank you, Faisal Saab. Ji. At the same time, we'd like to thank a few other people. The seminar would not have been possible if the platform for organizing this webinar was not given to us by Janab Abdul Ghafoor Danish Sahab and Aqif Naeem Sahab. We are very thankful to them for their collaboration. And I'd also like to thank Mr. Abdullah Samdani, president of different associations, all the dignitaries present over here from all over the world, guests from different parts of the world over here, and all the members of the Indian Forum for Education for their untiring efforts for making this webinar a success. I can see Mr. Abdullah Siddiqui sitting over here, so a big thank you to him for coming and attending this webinar. A big thank you to Dr. Engineer Suhail Ahmad Sahab for attending the webinar. And I conclude by saying that inshallah we'll continue to organize such informative and interactive webinars in the future as well for the benefit of the society and the benefit of our students. Thank you so much. शकील भाई अपना लास्ट शेयर खत्म कर दिए, आपका शेयर का इंतजार कर रहे हैं। वो शेयर रह गया था, उसको खत्म हो जाएगा। Yes sir. Now you can conclude with another share. We are waiting for that. शेयर तो कोई भी एक कह दे सर। नहीं, मैं तो 4 शेयर थे, लेकिन ये कि शेयर कहेंगे तो कंक्लूडिंग शेयर करिए जल्दी से। कंक्लूडिंग तो समझ नहीं आ रहा है, इसके बिना पूरी नहीं होगी बात। मैं बता रहा हूँ, 2-4 सेकंड मुझे, क्योंकि 4 शेयर का पूरा वो था तो कहने जा रहा था। अच्छा चलिए, 4 शेयर जो मैं अपनी बहुत शोर था। Just a minute, sir. Just a minute. I will unmute you. जी सर, एक शेर याद आ गया। जी सर, गो अहेड। वो जद्दोजहद के ऊपर है कि हमें हौसला नहीं हारना चाहिए और हर हालात में जद्दोजहद करना चाहिए, राइट डायरेक्शन में काम करना चाहिए। ये शेर मैं अक्सर पढ़ता हूँ कि प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए,
अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला, अपने काबा की हिफाजत हमें खुद करनी है, अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। मैं जद्दोजहद करते हैं। Excellent. Subhanallah, mashallah. Okay, sir. Thank you very much. And with this, we'd like to end the webinar. And once again, thank you to all the participants, and a special thanks to Professor Shakil Samdani for his nice lecture. Thank you, sir. मैं भी आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने बहुत अच्छा कंपेयर किया, दिलशाद साहब और अब्दुल गफूर साहब ने सारा किया और इतने सारे लोगों ने सुना। मैं रियली तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सलमान खालिद साहब, शहजाद समदानी साहब ये हमारे खास मेंबर हैं। जी 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 जी। तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि भाई मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। मैं तो अजर दे नहीं सकता, अल्लाह ताला अजर देगा। आपके बहाने बहुत से लोगों से बात हो गई, कोई दीन की बात हो गई, कोई दुनिया की हो गई, कुछ कम्युनिटी की बात हो गई, और अल्लाह ताला इसका अजर दे। कोई बोलने में मुझसे कोई गलती हो गई हो, कोई कमी हो, नहीं, एक्सीलेंट, माफी मांगता हूँ आपसे। Thank you. Thank you. Assalamu alaikum and thank you everyone. वालेकुम।